Okay, so last time we have written the script, right? So we started with the Git, and we were also able to complete the user script. Okay, so here is our script, and this we have posted, but we need to see how this script will perform. So what we have to do, I have AWS. We'll talk about AWS as well, and what are we doing, and we'll start exploring the cloud along with that. So let me log in. Okay, so इसका मेरे पास में की है. I mean, I hope everyone here knows what happening, right? मैं किस तरह से इसको SSH करने वाला हूँ, because we've already gone over SSH in absolute detail, right? कि SSH किस तरह से काम करता है. So everything I have it here. I also have a key somewhere which I need to figure out where. So यहाँ पर repository मेरे पास है, और यहाँ पर हमारी so no explanation here for anything because अच्छा okay. Okay, so what I have done, जो हमारी last time पे repository थी, उस repository में हूँ मैं यहाँ पर, and यहाँ पे हमने repository clone किया था, plus एक और directory बनाई है जहाँ पे मैं key रखने वाला हूँ. So I have the key. So ये key है. This is my private key, और ये using this key. Okay, you can't hear me. Is this a problem with the other as well? बाकी लोग का आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. Yeah, we can hear you. Yeah. I think. तो ये हमारी की है. Using this key, I can log into the server. यहाँ से मैं log in भी कर सकता हूँ. ठीक है, तो आज हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, and then we'll talk about the gate, and फिर we also need to talk about the services, क्योंकि अब सारी चीजें जो है एक combination में होगी, and then we'll start the cloud as well. And for now we'll stick to AWS cloud, but slowly we'll also explore the other cloud providers as well. So people who are just joining for I see a lot of people are there, only few people that are new. You may not be able to pick it up everything all together, so you need to go back and watch all the recordings before you come to know what is happening here. तो जानने से पहले वहाँ जाके ये करना होगा. तो एक काम करता हूँ मैं, हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर. So I have a server here, and then I have an तो मेरे पास में अब यहाँ पे एक GitLab है जहाँ पर हमने क्या करा हुआ है. GitLab पे हमने हमारी repository रखी है, ठीक है. And then this AWS. तो ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है. And this is GitLab, and this is AWS. On AWS, I have created a server जहाँ पे मैं ये सारे एक्टिविटी करना चाहूँगा, और यहाँ पर ये GitLab है जहाँ पे मैंने GitLab repository. GitLab में बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है. If you look here, यहाँ पे इतने सारे सर्विसेज दिया है GitLab में. उसका मतलब repository है, issues है, merge request है, CI/CD है, compliance, deployments, monitor, infrastructure, all the way. मतलब even the wiki is there and analytics as well. Right now
द ओनली थिंग वी आर यूजिंग ऑफ द गिटलैब इज रिपोजिटरी, और बाद में हम लोग दूसरी चीजें देखेंगे। एंड वेदर वी यूज गिटलैब हियर, या हम लोग गिटहब यूज करेंगे या फिर हम लोग Azure DevOps यूज करें या Bitbucket यूज करेंगे, सारी चीजें वही रहेगी। अभी फिलहाल के लिए द ओनली थिंग वी आर यूटिलाइजिंग इज दिस, ठीक है, इज द रिपोजिटरी। सो सोर्स कंट्रोल जो है हमारा और वर्जन कंट्रोल जो वो कर रहे हैं। एंड लास्ट टाइम पे मैंने एक ओवरव्यू तो दे दिया था तुमको बेसिक क्या वर्जन कंट्रोल रहता है, बिकॉज if you are not from a development background, तो तुमको समझ में you'll find it little difficult to understand or wrap your head around। तो मैंने एकदम easiest way में explain किया हूँ, that will at least give you a clear understanding, क्योंकि lot of time happens जो इन sysadmin को नहीं समझ में आता कि गिट क्या करता क्या है। तो basically we all do, हम लोग जब भी कुछ चेंजेस करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, कॉपी बना के रख देते हैं उस फाइल का, ताकि अगर हम लोग कुछ गड़बड़ करेंगे तो उस कॉपी से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये काम कौन करेगा, गिट करने वाला है हमारे लिए। गिट जब भी हम लोग चेंजेस सेव करेंगे, गिट उसका एक कॉपी बना के रख देगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रिपोजिटरी सर्विस, ठीक है, विद इन द गिटलैब। और रिपोजिटरी में हमने क्या कर रखा है, वी हैव आवर रिपोजिटरी, जो कि उसमें हमने एक स्क्रिप्ट है। रिपोजिटरी में हमारा रिपोजिटरी इज नथिंग बट अ फोल्डर। उस फोल्डर में तुम और फोल्डर रख सकते हो और फाइल्स रख सकते हो, जितना मतलब तुमको स्ट्रक्चर जिस तरह से बनाना है उस तरीके से बना सकते हो। इफ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या किसी को देखा है कुछ डेवलपमेंट करते हुए, तो यू मस्ट हैव सीन कि उनकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहती है। मतलब अगर कोई वेब एप्लीकेशन बना रहा है तो उसका फ्रंट एंड के लिए डायरेक्टरीज रहेगी, उसके एक एक कंपोनेंट के लिए भी एक एक डायरेक्टरी और एक फाइल रहने वाली है। तो वो सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में रहती है कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी रहेगी, और ये ऑर्गेनाइज इसीलिए किया जाता है सो यू कैन एक्चुअली बैक ट्रैक इजीली। अगर तुम कचरा कुंडी करोगे, पूरा मेसअप रहेगा, तो तुमको समझ में नहीं आएगा बाद में। तुमने खुद ने भी लिखा हुआ रहेगा ना, तो तुमको खुद नहीं समझ में आएगा 2 महीने के बाद कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा हूँ और कहाँ पे से क्या इन्फॉर्मेशन उठानी है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, ऑलवेज कीप इट क्लीन और कीप इट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। जितना साफ सुथरा रखोगे उतना आगे तुम्हारा भी टाइम बचेगा, और दूसरा जब तुम्हारे से हैंड ओवर लेगा, बिकॉज दैट इज द एक कॉमन चीज रहती है ऑर्गेनाइजेशन में कि लोग आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग काम करेंगे 4-5 महीने 4-5 साल और वो चले जाएंगे। तो उस बंदे ने जो 4-5 साल में जो भी काम किया होगा, तो वो काम अब किसी को हैंड ओवर लेना पड़ेगा, बिकॉज एक बंदा छोड़ने की वजह से कंपनी तो बंद नहीं होने वाली है, कंपनी किसी उसका रिप्लेसमेंट लेकर आएगी, तो उसके रिप्लेसमेंट को समझ में आना चाहिए। तो इफ यू, और सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ भी होगी, तुम भी किसी और कंपनी में जा रहे हो और वहां पे भी किसी और ने जॉब छोड़ा है, तो अगर ये एक कॉमन प्रैक्टिस जो रहती है, जिसको हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस और जो ये किया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो की जाती है पर्टिकुलर इसके लिए कि ऑर्गेनाइज वे में किया जाए, ताकि वी मेक आवर लाइफ इजी एंड द अदर्स लाइफ इजी एज वेल। तो ये कॉमन ये बिहेवियर पैटर्न है which everyone should follow, और अपना भी फोकस वही रहेगा। सो आई वुड वांट encourage everyone to follow that। जितना क्लीन वे में काम करोगे, ऑर्गेनाइज वे में काम करोगे, उतना बेटर रहेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू डू दैट वे। जो भी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में तुम पढ़ सकते हो ज्यादा। लाइक अभी हम लोग शेल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, शेल स्क्रिप्ट की बेस्ट प्रैक्टिस है कि किस तरह से लिखा जाएगा। मैंने कुछ बता दिया हूँ तुमको, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट मोर विच यू कैन एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड। और इसको मास्टर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अलग अलग यूज केस लेके ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं सारी शेल स्क्रिप्ट तो लिखना नहीं सिखा सकता हूँ तुमको, बिकॉज दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि तुमको सिखाया जाए लॉजिक। तुमको ऐसा मैं सिखाऊंगा कि 8 + 8 16 होता है, उसके बाद में तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढोगे, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढोगे, और दोनों का एडिशन तुमको करना है ऑन द बेसिक ऑफ लॉजिक दैट यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ मतलब क्लास में बिठा के सारे टाइप के शेल स्क्रिप्ट मैंने लिखवा सकता हूँ। तो तुमने जो अगर सिर्फ मुझे देख के फॉलो किया ना, फॉर अ स्टार्टर दैट इज फाइन, कि जैसा मैंने लिखा वैसा लिख दिया। फिर उसके बाद तो दैट शुड नॉट बी योर सेटिस्फैक्शन लेवल कि मुझे शेल स्क्रिप्ट आती है। तुमको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि तुमने बस कॉपी पेस्ट किया है और तुमने उसको कस्टमाइज भी नहीं किया, एज इट इज बस कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसा मैंने दिखाया वैसा कर दिया। तो यू शुड डू डिफरेंट वे। बहुत सारे यूज केसेस हैं जो हम लोग भी दे देंगे तुमको एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट, और उसको समझ के करने की कोशिश करो आगे, ठीक है। तो अभी करना क्या है हमको, मैं यहाँ से इस सर्वर पे कनेक्ट करने वाला हूँ, और इसको कनेक्ट करने के लिए मैं क्या डायरेक्ट SSH क्लाइंट यूज करूँगा, ठीक है। तो SSH के लिए हमको क्या चाहिए, पब्लिक प्राइवेट की चाहिए। वंस आई एम हियर ऑन दिस सर्वर, मैं इस सर्वर को इस रिपोजिटरी से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी राइट नाउ क्या है मेरे पास में, रिपोजिटरी यहाँ पर है, बिकॉज मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। एंड
द वे आई एम कनेक्टिंग इज वहां पर भी मैं SSH को ही यूज कर रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग git clone, और उसके बाद में जो भी URL है SSH वाली URL है, SSH वाली URL में क्या रहेगा, देयर विल ऑलवेज बी अ यूजर नेम एंड वेयर वी आर गोइंग, राइट। यहाँ पे हमारा कमांड क्या बन जाएगा, SSH एंड देन यूजर नेम एंड @IP। तो वहां पर भी git clone की URL को अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो समथिंग सिमिलर हैपनिंग वहाँ उधर पर भी, वहां पर भी उसी तरीके से ऐसे ही बना कंस्ट्रक्ट करके बनाएगा, बिकॉज कोर कंसेप्ट ऑफ द SSH रिमेन्स द सेम, कि तुम्हारे पास एक ताला है, एक चाबी है, तो तुमको चाबी तुमने अपने घर वहाँ पे सर्वर पे लगाया है या फिर रिपोजिटरी में लगाया है, तो तुमको चाबी लेके जाना पड़ेगा। तो बस तुमको टेनेंट हो, मतलब पूरी तुमको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर जाना है, उस घर का नंबर क्या है, उस और उसका एड्रेस क्या है, और वो किसके नाम पे रजिस्टर है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है इसके साथ में, ठीक है। तो ये हमारा EC2 है। So let's first log into this EC2. So SSH, and if I specify username and password, let's take the what is the IP? ये IP है हमारा, ठीक है। पब्लिक IP चाहिए, क्यों पब्लिक IP चाहिए ये भी हमने देख लिया है। इसका यूजर नेम जो है ubuntu है, बिकॉज वो इमेज बन लिया हूँ। और AWS पे ऐसा है कि you cannot create, I mean you can create a username, but AWS does not provide any way to actually inject your own username। बाकी अदर क्लाउड प्रोवाइडर जो हम लोग देखेंगे गूगल एंड एज़्योर लेटर, वहाँ पे we will have the ability to give our own username। मैं कुछ भी यूजरनेम दे सकता हूँ, the primary username from the console itself। तो AWS का ही फीचर है, AWS provides us ability to give any user that we want। हमको जो यूजर चाहिए हम वो यूजर दे सकते हैं, पर AWS के केस में वैसा नहीं है। उसका जो यूजर रहेगा ना, जब इमेज बनी है, जब इमेज को बिल्ड किया गया है, कुक किया गया है, तो उस टाइम पे जो भी यूजर बना है वही यूजर रहेगा, एंड दैट समथिंग वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो वो उस तरीके से बता रहा है कि ये यूजर नेम है और ये पब्लिक DNS लिया है, ठीक है। तो पब्लिक DNS को अगर मैं, क्योंकि एक चीज क्या है कि एवरी कम्युनिकेशन हैपेंस ऑन द सॉकेट, एंड सॉकेट इज नथिंग बट योर IP एंड द पोर्ट। तो ये क्या है, ये दिस इज नॉट IP, इवन दो IP जैसा बना हुआ है, बट दिस इज नॉट IP, ठीक है। ये तुम्हारा पब्लिक DNS है, तो ये पब्लिक DNS को उसने रिजॉल्व करने आना चाहिए इसको। तो अगर मैं ये भी दूंगा तो क्या होगा, ये इसी IP पे रिजॉल्व करना चाहिए। ये लोग AWS जो है ये ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन जैसा यूज कर रहा है। देयर इज अ टूल जो कि पब्लिक IP ऐसा बना देता है इसके हिसाब से। तो ये AWS का DNS है जो पब्लिक IP क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देता है, देयर सम लॉजिक। तो अगर मैं इसको NS लुकअप मेरे पास नहीं है NS लुकअप, सो पिंग करता हूँ, पिंग में आ जाएगा। होपफुली 3 टाइम्स ओ लिख दिया। क्या लिख दिया ना, अच्छा 3 और ओ ठीक है। हाँ तो चलो गलत है इसलिए, बट आई थिंक ये एनीवे पिंग में भी वो IP आ गया है हमको, राइट। तो पिंग में पिंग हुआ नहीं उसका, और पिंग नहीं हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाई पिंग क्यों नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि हर चीज को कनेक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, पोर्ट रहती है, और वहाँ पर पोर्ट है, वहाँ पे उस पर कनेक्ट हुआ नहीं है हमारा, ठीक है। तो पिंग इसलिए हमारा हुआ नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक फायरवॉल है, वी आर कनेक्टिंग टू AWS, और ये सारी चीजें मैंने बता रखा हूँ, राइट। तो इतना डिटेल में मैं कुछ भी अभी नहीं बताने वाला हूँ, यू नीड टू गो बैक एंड वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। तो ये फायरवॉल है यहाँ पर, एंड दैट फायरवॉल इज एक्चुअली ब्लॉकिंग। तो जब हम लोग SSH कर रहे हैं, तो यहाँ पे SSH का जो पोर्ट है, आई होप एवरीवन नोस व्हाट इज द पोर्ट फॉर द SSH, राइट। सो TCP/22, ये पोर्ट यहाँ पे रहना चाहिए ओपन। ये पोर्ट अगर ओपन रहेगा तभी हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब मैं पिंग कर रहा हूँ तो एक और पोर्ट रहती है, दैट इज ICMP। तो अगर ये पोर्ट ओपन है, देन ओनली I'll be able to पिंग। अगर ये ओपन नहीं रहेगा ना पोर्ट फायरवॉल पर, तो मैं पिंग नहीं कर सकता। तो फायरवॉल में भी क्या क्या चीजें लगती है मैंने बेसिक्स बता दिया हूँ, बाद में हम लोग क्लाउड की लैब्स कर सकते हैं। एंड जिनको मतलब थोड़ा सा नेटवर्किंग में परस्यू करना होगा, दे कैन इवन ट्राई टू इम्प्लीमेंट जो थर्ड पार्टी रहते हैं, PA फायरवॉल और Fortinet वगैरह के, जो मैंने बताया हूँ स्टार्टिंग में, तो वैसा कर सकते हैं। बट हम लोग विल स्टिक टू दिस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तुम अनलेस यू आर ज्वाइनिंग कंपनी, कोई ऐसी कंपनी में तुम काम करोगे जो स्टार्टअप है या एकदम स्मॉल साइज है, तो वो ऐसा यूज करेगी।
मिड साइज लार्ज साइज कंपनी दे डोंट यूज क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस, वो उनका खुद का रहता है बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, सो दे विल ऑलवेज यूज कोई ऐसा थर्ड पार्टी सोल्यूशन वाला फायरवॉल यूज करेंगे वो लोग। पीए फायरवॉल हो गया, फॉर्टिनेट हो गया, चेक पॉइंट हो गया, बहुत सारे हैं। तो मैजिक क्वाड्रेंट पे मैंने बताया था कि कितने कितने कहाँ से तुम ये कर सकते हो। ठीक है, तो पिंग यहाँ से नहीं हो रहा है लैपटॉप से बिकॉज ICMP इज मिसिंग। अगर मैं ICMP वहाँ पे उसको लगा दूंगा तो पिंग हो जाएगा, बट आई थिंक दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। वन थिंग आई नो कि 22 यहाँ पर है, तो 22 पे हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। इफ आई ट्राई टू कनेक्ट ऑन दैट, तो यूजर नेम पता है हमको क्या है इसका, ये यूजर नेम है। और अगर मैं ऐसे एंटर करता हूँ तो ये कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब इट विल एरर आउट। एरर में क्या दिया उसने, पब्लिक की परमिशन डिनाइड। क्यों? क्योंकि मैंने जो उसको की रखा हूँ उसको वर्बोस मोड में भी रन कर सकते हैं, तो वी कैन रन विद द वन वर्बोस मोड, और उसमें सारी चीजें बताएगा वो क्या क्या कहाँ पे कर रहा है बिफोर थ्रोइंग आउट द एरर। और ये इसकी वर्बोसिटी में बढ़ा सकता हूँ, लेवल 2 लेवल 3 कर सकता हूँ ऐसा। लेवल 2 अब ये क्या करेगा, डिबग 1.1 बता रहा है ना, डिबग 2.2 भी बताएगा जहाँ जहाँ पे उसको। तो इतने मैसेजेस जो है हिडन रहते हैं हमारे पास में, और आई थिंक लेवल 3 तक ही रहता है। तो तुमको यू कांट जस्ट कीप इंक्रीजिंग इट बिकॉज इतना किसी ने प्रोग्राम लिखा हुआ है, और उस प्रोग्राम के लिखने के बेसिस पे ही हमको ये सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। तो debug 1 debug 2 debug 3 all this information are coming with that, but at the end of the day यही आ रहा है। तो when you don't specify -v flag, you simply get this error. When you specify debug option, you see what's happening behind the scene. So this is good for troubleshooting purpose if you are making any mistake. But अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने SSH किया, ठीक है। तो मैंने इसको तो बताया नहीं चाबी कौन सी यूज करनी है। मतलब SSH का क्या है कि एक सर्वर पे कनेक्ट करेगा, इस सर्वर पे कनेक्ट करने वाला है जहाँ पे हमारा ताला लगा हुआ है। व्हाट इज द पैडलॉक फॉर अस, दैट्स अ पब्लिक की। पब्लिक की इज अटैच्ड टू दिस सर्वर, राइट। और यहाँ से हम लोग ये जो हमारा SSH क्लाइंट है, ओके सॉरी, तो ये जो हमारा SSH क्लाइंट है, दिस गाय विल यूज द प्राइवेट की, और वो उस तरीके से पेलोड बनाएगा और जाके वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। He'll create a tunnel and then through that tunnel he will connect, right? We've gone through all of those. So अभी यहाँ पे मैंने की स्पेसिफाई नहीं किया, I have not specified any की कि कौन सी की यूज करना है। तो वो क्या करता है, डिफॉल्ट की यूज करता है, and you should know what is the default key, ठीक है। I'm not gonna explain you कि डिफॉल्ट की कहाँ रहती है, डिफॉल्ट की का क्या लोकेशन रहता है, because these are all done. अब यहाँ पे I can specify my key which is a non-default key, and I think I have it. यहाँ पर अपने पास -I for identifier, तो मेरा आइडेंटिफायर ये रहेगा। ओके, सो नाउ मेरा कमांड चेंज हो गया है। मैंने इसमें क्या कर रहा हूँ, और ये लगाया बिकॉज मेरी जो की है दैट इज स्टोर्ड ऑन द नॉन डिफॉल्ट लोकेशन। अगर मुझे इस की को नॉन डिफॉल्ट लोकेशन से हटाना है तो आई हैव टू स्पेसिफाई बिकॉज SSH वुड नो दैट। सेम थिंग हैपेंस विद द गेट एज वेल। गेट भी क्या करेगा, डिफॉल्ट की ही, डिफॉल्ट लोकेशन की ही रीड करेगा। मैंने लास्ट वीक भी बता दिया था डिफॉल्ट लोकेशन क्या है, तुम लोग को पता होना चाहिए। आई नॉट राइट दिस नाउ हियर, लेट्स हिट एंटर। मतलब कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम सिंपली आइडेंटिफाइंग द पीपल हु आर मेकिंग एफर्ट्स एंड इंक्लूडिंग देम इन द, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं पूछता था लोगों को, लेकिन अभी तो हार्डली पीपल आर ज्वाइनिंग। आई मीन वी हैव लाइक 100+ पीपल, जिसके दिल में जब आता है वो जब ज्वाइन कर लेता है। तो इसलिए ओनली पीपल will be going ahead with me, the people who are constantly joining and making progress. बाकी I will just make this so जो नए बंदे लोग को भी मैं invite करूँगा तो at least they can go through the video and वो समझने की कोशिश करेंगे। So don't bother yourself about answering because I'm tired about asking you guys to answer a question. So you can be yourself, जैसे हो वैसे रहो। रोज जो लेक्चर में आना है आ जाओ, सुनना है सुन लो। जो जिन लोगों को बेनिफिट करना है they will benefit from it and actually they are benefiting it. So I've realized not to waste my time during a lecture to तुम लोगों को से लेक्चर देते रहूं, so it's better do that. So no need to answer anyone. I'll just plan. मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पर्पसली तुमको ऐसा बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगा कि अच्छा ठीक है मुझे ये भी देखने की जरूरत पड़ेगी, मुझे ये भी जाके देखना चाहिए। तो वो तो इन केस
क्योंकि क्या चीजें प्रैक्टिस से आने वाली है, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस तो तुमको नहीं आएगी, और मैं यहाँ पे तुमको हेल्प कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो इस तरीके से, ये इस तरीके से प्रैक्टिस होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर हियर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इस रेपोजिटरी को लेकर आना है, तो अगेन आई हैव टू सेट अप SSH बिटवीन दीज टू, बिकॉज दैट्स द वे वी आर गोइंग अबाउट। तो SSH में गिट में क्लोन कर, गिट को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट रेपोजिटरी, दिस नॉट अ पब्लिक रेपोजिटरी, ठीक है। अगर ये पब्लिक रेपोजिटरी रहती तो हमको कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जैसा ये हमारा प्राइवेट सर्वर था और हमको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ी, अगर वैसा ही अगर ये भी पब्लिक रहता, ये भी प्राइवेट है, तो यहाँ पर भी हमको ऑथेंटिकेशन लगेगी, यहाँ पर भी फायरवॉल होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनेज्ड बाय गिटलैब। तो गिटलैब का काम रहेगा ये सब। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाया, विच इज इन अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल राइट नाउ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए दिस फायरवॉल इज कंट्रोल्ड बाय अस राइट नाउ। और यहाँ पे मैंने एक ही रूल बना रखा हूँ TCP/22 का, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर कनेक्टिंग, ओके। सो बट दिस इज नॉट द केस हियर, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट बाय अस, इट्स अ SaaS based solution, GitLab is taking care for us. So you can just simply replace this GitLab with a GitHub or Bitbucket or Azure DevOps or any other version control system that are out there. Don't confuse this with the Jenkins, because Jenkins and Circle CI और जो जितने भी पुराने हैं, they don't have that capability of giving you the version control. वो different purpose के लिए, and we'll explore that as well, and we'll do some labs as well. But the better for us would be to stick to GitLab, because GitLab is considered to be the modern CI/CD tool, and it is a whole package, and it has a lot of functionality and feature. That's the reason why I'm starting with this. But here यहाँ पे कंसेप्ट समझो, ठीक है। कंसेप्ट समझोगे ना तो चाहे तुम गिटलैब पे काम करो या गिटहब पे करो या बिटबकेट पे करो या Azure DevOps पे करो, जो भी अवेलेबल है जो फेमस है, वैसे तो तुम लिस्ट निकालोगे इंटरनेट पे, तुमको 100 सर्वर दिख जाएंगे वर्जन कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर पूरा CI/CD का तुमको पूरा स्वीप दे रहा है, बिकॉज दिस इज स्वीट ऑफ CI/CD। यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है हमको CI/CD करने के लिए। Okay, so we need to set up the same thing here. अब यहाँ पे तो मैंने कर दिया था, and something we have already seen, we have done there, been there. तो वो चीजें तो अब नहीं होगी। यहाँ पर भी किया था, तो इसलिए I'm gonna just quickly go ahead and do it, right? So what I have, because this is a new server, brand new server that I have, it doesn't have anything here. What I need here to configure the authentication. तो मुझे अब GitLab पे मेरी जो SSH की की है वो इंजेक्ट करना पड़ेगा, and then I can able to clone this repository, which जो यहाँ पर, ठीक है। तो let's do that setup. मैं यहाँ पर आता हूँ, go back to this thing. इसमें प्रेफरेंस में जाएंगे, समय पहले I need to generate the key, right? तो मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ SSH-keygen, and that's it, that's all. ये command, this command is good enough for me to generate the key. I would want to keep this on the default location, because default location पे, unless you know how to work with the Git. अभी जैसा हमने SSH से काम किया था, SSH को बताया non default location पे की कहाँ पर है with the -i flag, but that's not the case with the Git. You can't just specify at the runtime. There are ways which maybe you can find out कि जब तुम अपनी की को non default location पे रखते हो, how do you make sure कि Git read करता है, because अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे, अगर ये चीजें हम लोग यहाँ पे करते बैठेंगे तो ये हो जाएगा। तो मे बी यू कैन डू दैट कि गिट को नॉन डिफॉल्ट लोकेशन पे की रख के कहाँ से करेंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे रखूँगा तो सिंपली फेल होगा। तो लेट्स डू दिस एंड कैट, ये वाला लोकेशन है जहाँ पे उसने की रखा है हमारा, ये प्राइवेट की है, दिस इज द पब्लिक की। सो दिस पब्लिक की आई नीड टू इंजेक्ट हियर। So we need to come to preference and SSH key. ज़्यादातर केसेस में यही this is the location where you want to do this. और this is अभी इसमें एक प्रॉब्लम भी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुमको जितने भी रिपोजिटरी पे एक्सेस होगा ना, बिकॉज दिस इज एक्चुअली इंजेक्टेड इन योर प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल में हो रहा है। तो मैं आई एम अ यूजर ऑन द GitLab एंड आई मे बी विद इन दिस रिपोजिटरी देयर आर सो मेनी डिफरेंट रिपोजिटरीज आई हैव, राइट। यहाँ पे मेरे पास में अभी तो हम लोग एक पे कर रहे हैं, लेकिन मुझे और भी रिपोजिटरी में है। तो ये की से क्या हो जाएगा, मैं सारी रिपोजिटरी पे एक्सेस एक्सपोज हो जाएगा। लेट्स से कि क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे की जनरेट किया, राइट, और इस की को मैंने अपनी प्रोफाइल में डाल दिया।
इस पे कल को कोई और लॉग इन करेगा तो ही विल ऑल्सो बी एबल टू मेस अप विथ माई आईडी, क्योंकि गिट से जो भी काम करेगा तो उसपे मेरा नाम आने वाला है, तो उसपे जो नाम है मेरा छप के जाएगा हर बार, क्योंकि की जो है मेरी प्रोफाइल में रखा हुआ है। तो समटाइम्स अभी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, क्योंकि ये तो मेरी प्रोफाइल में चले गए हैं। एंड वन प्रॉब्लम इज कि यहाँ से कोई भी यूजर आके उसको इंजेक्ट कर सकता है, तो इट शुड हैव बीन के यूजर स्पेसिफिक की रहा है। पहला प्रॉब्लम यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर है कि अलॉन्ग विद दिस रिपोजिटरी जो हम लोग ओपन कम्युनिटी रेपो जो हमारी है, अलॉन्ग विद दैट आई एम आल्सो एक्सपोजिंग अदर रिपोजिटरीज। तो मेरे पास में यहाँ पे और भी रिपोजिटरीज है, मतलब आई हैव अ प्रोजेक्ट रिपोजिटरी जो मेरे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के रिपोजिटरीज हैं जो हम लोग करते हैं, तो सारी रिपोजिटरी एक्सपोज हो गई है अब विद इन यूजिंग दैट सेम की इन वी कैन क्लोन एनी ऑफ दिस रिपोजिटरी, क्योंकि मैंने ये मेरे प्रोफाइल में डाल दिया हूँ ना, तो ये मेरा प्रोफाइल है, तो मुझे जिस जहाँ जहाँ पे एक्सेस है इस गिटलैब सर्वर पे सब जगह पे हो गया है ये काम, सब जगह पे मतलब ये चले गया है मेरा एक्सेस। तो दिस इज फॉर स्टार्टर है, आगे जाके इसको हार्डन करेंगे, दैट्स वुड बी हार्डनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द गिटलैब और हाउ वी डू दिस। और यहाँ से की मैं ऐड कर देता हूँ, ये वाली भी कर लेते हैं। So while we are just trying to get this up and running, get ourselves up and running, but this is not the best practice. ठीक है, so just remember that as well. मैंने challenge बता दिया हूँ तुमको, you can think of solution or you can wait until I'll show you the solution, right? तो अगर तुम wait करोगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से ये स्पेसिस आ गया इसमें की में। mute कर लो, unless you have a question then mute it, you don't need to answer anything if you have question। नहीं मैं बोल रहा था स्पेस आ गया की में। कहाँ पर? देखो बीच में पी के बाद वो स्पेस नहीं है उसमें, ये किया हुआ है। अच्छा स्पेस आया है क्या? अच्छा लाइन डिवाइड आ गया, हाँ इंटर आ गया इसकी वजह से। इसकी वजह से आया, तो I'll have to open this on the notepad। तो ये मेरे WSL का प्रॉब्लम है, बिकॉज आई एम यूजिंग WSL 18 और WSL 18 में वो क्या करता है इसलिए मैंने उस पर Z shell डाला था यहाँ पर, लेकिन WSL फिर से बैश पे आ गया है, तो WSL बैश जो है प्रॉब्लम है, तो की में इंटर आ गया है एंड दैट्स द प्रॉब्लम। गुड कैच, क्योंकि ये फेल होता था और फिर बाद में हम लोग सर को जाते बैठते थे, काम पे फेल हो गया है। ठीक है, आई थिंक अभी नहीं है इसका फॉर्मेट में से वर्ड रैप हटाता हूँ, एक लाइन में आना चाहिए पूरा, ठीक है। तो देयर शुडंट बी एनी एंटर। नहीं तो बहुत अच्छा देख लिया तुमने, नहीं तो फंस जाते थे हम लोग और तो खेलते बढ़ते थे काम पे में, क्योंकि मेरा पुराना WS है ना, तो यस, तो ये इस तरीके से दिखना चाहिए। तो जब जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उनको समझ जाता है देखते के साथ। अभी मुझे भी समझ जाता था ये, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मेरा जो ध्यान है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, इसलिए आई वाज नॉट एबल टू पिक दिस अप। ओके, सो दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू, राइट, ऐसी चीजें बताती है कि यू आर एक्चुअली लर्निंग। ठीक है, so let's add it। The form contains the following error: fingerprints has already been taken, fingerprints cannot be generated, the type is forbidden, must be RSA। ठीक है, अभी भी कुछ तो इशू हो रहा है इसके अंदर में, क्योंकि it's not able to detect this। मैं एक काम करता हूँ, इस सर्वर पे इधर से कनेक्ट करता हूँ तो वीआई में खोल के ओपन करके करेंगे तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करता हूँ, और इंस्टेड मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ इसको। लेट्स कॉपी दिस की, ये की को यहाँ से कॉपी करना भी नहीं जरूरत है। क्योंकि अब ये की को भी कॉपी करेंगे यहाँ पर तो वही बात हो जाएगी। ओके, मेरे पास में आई थिंक आई हैव दिस की इन द डाउनलोड्स। की का नाम देते हैं WS की पे।
let's use that command जो हमने किया था connect करने के लिए. अब ये की जो है मेरी करंट डायरेक्टरी में, राइट, इट्स नॉट इन अ डिफरेंट डायरेक्टरी, सो आई एम इनसाइड द कीज डायरेक्टरी, राइट, तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ. तो यहाँ पे तुम्हारा लिनक्स का कंसेप्ट आना चाहिए, नहीं तो की रखोगे कहीं पे और उसको बता दोगे कहीं पे. लास्ट टाइम पे मैंने रिलेटिव पाथ यूज किया था, अभी भी रिलेटिव पाथ यूज कर रहा हूँ मैं. दूसरा रहेगा हमारा एब्सोल्यूट पाथ. तो रिलेटिव पाथ जब भी यूज कर रहे हो तुमको पता रहना चाहिए कि मैं बैठा हुआ हॉल में हूँ और की रखा हुआ है बेडरूम में, तो मैं हॉल में नहीं ढूंढ सकता हूँ उसकी को, मुझे बताना पड़ेगा उसको कि बेडरूम में से जाके की लेकर आनी है. तो फिर जो यहाँ पर वही था, क्योंकि मैं जिस डायरेक्टरी में था उस डायरेक्टरी में की नहीं थी, की डॉट कीज डायरेक्टरी में था और डॉट कीज डायरेक्टरी यहीं पर है, यहाँ पे हिडन है वो, राइट. तो उस तरीके से मैंने उसको बताया कि डॉट कीज में जाके AWS की पर ढूंढना. इस टाइम पे मेरे करंट डायरेक्टरी में ही की है, तो आई डोंट नीड टू टेल हिम एनीथिंग. यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ क्योंकि मेरी जो डायरेक्टरी है दैट इज द सेम, जहाँ से मैं कमांड रन कर रहा हूँ दैट इज माय वर्किंग डायरेक्टरी. तो मेरी CWD is same as the key where the key is. So I can hit enter now. Permission देना चाहिए. इसकी वजह से हो रहा है. तो 400 किया है, ये हो रहा है. ये AWS परमिशन से ये करता है, इसकी परमिशन जो है उसने ये कर रखा है. तो देयर इज ऑलवेज अ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम. वी आर रनिंग, हम लोग ये सीक्वेंस से इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस, सो वी आर रनिंग इन द लूप. सो यहाँ पे परमिशन अभी चेंज वो नहीं कर रहा है, तो आई नीड टू अपडेट दिस क्योंकि लेटेस्ट मोबा भी इसको सपोर्ट करता है. So let's do the इसको पासवर्ड सेट कर रहा हूँ मैं. पासवर्ड सेट हो गया नहीं, मैंने शायद गलत आंसर दिया. पासवर्ड सेट. सेकंड मुझे ये करना पड़ेगा, पासवर्ड इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि SSH जो है बाय डिफॉल्ट सिर्फ की बेस्ड ऑथेंटिकेशन ही करता है. सो दैट समथिंग आई हैव टू डू दैट. तो अभी अगेन यू नीड टू, यहाँ पर वापस से तुम्हारा SSH का आएगा. मैंने बताया भी था कि SSH पहले मुझे अभी SSH को बोलना है कि भाई अब तूने पासवर्ड बेस्ड भी ऑथेंटिकेशन अलाउ करना. अब तक तो सिर्फ की बेस्ड कर रहा था, तो मुझे जाके उसके कॉन्फ़िगरेशन को ट्वीक करना पड़ेगा. और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे मिलेगी हमको? etc डायरेक्टरी में मिलेगी, राइट. तो विल फाइंड इन etc डायरेक्टरी. अब इसमें मैंने दो बताया था विद इन. एक जो पैटर्न रहता है etc में क्या रहेगा, SSH करके डायरेक्टरी रहेगी, ठीक है. और इसके अंदर में 2 फाइल रहने वाली है SSH के नाम से. एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी फाइल क्या है. मैंने बता रखा हूँ सब ये. तो मैं सिर्फ यहाँ पे ls करके तुमको दिखा देता हूँ कुछ. तो यहाँ पे इतने सारे फाइल्स हैं जिसमें से 2 कॉन्फ़िग फाइल है, एक ये रहा और एक ये रहा. अब मुझे कौन सी कॉन्फ़िग फाइल में जाना है, राइट. ये 2 कॉन्फ़िग फाइल किस पर्पस के लिए है, समथिंग यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि बता हम लोग ने देख चुके हैं. तो मैं लिख देता हूँ आपको. क्लाइंट सर्वर. हाँ मत बताओ आंसर, मुझे पता है तुमको पता है आंसर. एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जाके अपना समझे. तुमको समझ में आ गया which is a good thing, बाकी लोगों को भी समझे, इसलिए I'm not asking questions. सुडो भी हम लोग किस तरह से कर रहे हैं ये भी हमने देख चुके हैं ऑलरेडी. व्हाट इज सुडो, किस तरह से काम कर रहा है. अब यहाँ पे ओनली थिंग आई नीड टू सर्च, इट इज विद द फॉरवर्ड स्लैश. सर्च हमेशा फॉरवर्ड स्लैश होगा.
तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है देखो यहाँ पे नो कर रखा है उसने, तो मैं इसको जाके गेस कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में I'll have to reload the service. So service is something we will look into this. तो अब ये this is the only thing जो हमने अभी कवर नहीं किया है, जो हमको कवर करना, तो मुझे अभी रीलोड करना पड़ेगा। तो सर्विस देन जो मुझे काम करना है, तो मुझे रीलोड करना है SSHD सर्विस, ताकि शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सारा कुछ। अब लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, गेट दिस एम्प्टी। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट SSH को बोल सकता हूँ, तो SSH क्या करेगा, ये अब उसने पहले की चेक किया, उसको मिला नहीं, अब वो पासवर्ड पे फॉल बैक किया उसने, ठीक है। तो पासवर्ड में डालते हैं, पासवर्ड गलत ही जा रहे हैं, 3 बार कुछ किया। चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू अ लिटिल ट्रबल शूटिंग। पासवर्ड शायद मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, तो पासवर्ड जो है ये है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पासवर्ड, और इसका पासवर्ड जो है मैं ये रखता हूँ। ऐसा कभी करना नहीं है, ठीक है, देयर इज अ बेटर वे टू डू दिस, क्योंकि तुम पासवर्ड किसी को दिखना नहीं चाहिए तुम्हारा। अब ये पासवर्ड तो लर्निंग पर्पस के लिए सादा सुधा बना है, तो इसलिए सबको दिखेगा तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक। अब मैं क्या करना है, मुझे ये एक्चुअली लेता नहीं है लोगों से, ठीक है। ये जो SSH है ना, ये वैसे भी पासवर्ड नहीं लेगा, मुझे SSH पास एक और दूसरे कमांड यूज करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो जो पासवर्ड मैंने वेरिएबल में स्टोर किया वो तो नहीं होगा, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ उसको, विल सी दैट। एक यहाँ पे टेल कमांड है, हमने देखा था, राइट। अब टेल कमांड को मैं क्या करूँगा, फॉलो करूँगा, क्योंकि जब मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ तो लॉग फाइल में जो है लॉग जा रहा है, तो एक यहाँ पे लॉग है, और दिस इज बेस्ड ऑन कौन से सिस्टम पे हो, वेदर यू आर ऑन रेड हैट सिस्टम, सूजे सिस्टम और डेबियन बेस्ड सिस्टम्स, this will vary, or if you are on a Solaris or OpenBSD as well, तो ये लोकेशन वेरी करेगा। राइट नाउ एवरीथिंग इज लॉग हियर इन द ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, सारा लॉग यहाँ पे चल रहा है। तो आई कैन डू दिस टेल डैश एफ। टेल क्या करेगा, लास्ट के 10 लाइन दिखाएगा, उसको फॉलो करेगा, जब भी नई लाइन आएगी तो वो हमको बताते रहेगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है, देखो ये मतलब ऊपर में बताएगा शायद से, एक्सेप्टेड पब्लिक की दिस 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 दिस, तो ये जो यूजर है उसका एक्सेप्ट कर लिया उसने, वो बताया। अब हमारा जो फेल हो रहा है वो देखते हैं क्यों फेल हो रहा है। तो स्टोर पे चलिए, पासवर्ड तो यही से देना, तो यहाँ पे आ गया है, देखो ये इसका फेल हो रहा है, ये IP से आ रहा है कोई बंदा, उसका 182 से आ रहा है, एंड फेल पासवर्ड फॉर ubuntu दिस दिस दिस, ये मेरा क्लाइंट कोड था। सो मैसेज रिपीटेड 2 टाइम्स बिकॉज मैंने 2-3 बार पासवर्ड पंच किया था, एंड दैट्स हाउ इट्स फेल्ड। सो we'll simply close this now and let's see पासवर्ड कहाँ पे स्टोर रहता है यूजर का, ये भी तुमको पता होना चाहिए। शैडो फाइल में यहाँ पे एक्चुअली हमको दिखेगा नहीं बिकॉज वो इनक्रिप्टेड वे में रहेगा। तो ओके, एक्चुअली काम पर वेयर इज ubuntu यूजर, ubuntu यूजर का पासवर्ड कुछ ये है, सही से सेट नहीं हुआ। लेट मी कॉपी दिस, टाइप करने में शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया होना चाहिए। ओके, इस बार आया है, लास्ट टाइम पे ना कुछ नॉट साइन था, सो समथिंग वाज रॉन्ग देयर एट दैट टाइम आई गेस। तो ये जो पासवर्ड है ये कौन सा है, ये SHA एल्गोरिथम है, राइट। विल टॉक अबाउट इंक्रिप्शंस, हम लोग बाद में देखेंगे इंक्रिप्शंस को। तो जो भी मैंने वैल्यू लिखा हूँ ना, तो उसका यहाँ पे हैश फंक्शन बनाया हुआ है, और वो हैश फंक्शन इस तरह से स्टोर किया है। तो इवन ये भी किसी को दिखाना, मतलब दिस विल लीड टू अ डिक्शनरी अटैक, जो एक टाइप का अटैक रहता है, डिक्शनरी अटैक बोलते हैं उसको। तो वो अटैक यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, बट स्टिल यूजर इज, तुम लोग ने देख लिया मेरा पासवर्ड,
अब तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल. कैली लिनक्स जो बोला जाता है उसके ऊपर सारे टूल्स अवेलेबल रहते हैं जो तुमको सारे चीजें करने के लिए हेल्प करेंगे. तो दिस कैन लीड टू नाउ डिक्शनरी अटैक एंड यू कैन एक्चुअली गेट द एक्चुअल वैल्यू जो रहेगा पासवर्ड, बट वो थोड़े टाइम से आएगा. तो वो रिवर्स से हो सकता है. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन पासवर्ड दैट आई एम यूजिंग. Okay. किसी का क्वेश्चन है? फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट विद यूजिंग की एंड देन you can modify file and make it password. Yes, अभी के लिए because AWS by default उसको बन कर रहा है. मैं तुमको बाद में दूसरा तरीका बता दूंगा कि how you can do this without authenticating, right? तो समथिंग वो वाला पार्ट जो रहेगा ना हमारा क्लाउड का पार्ट हो जाएगा कि हाउ टू अंडरस्टैंड द क्लाउड. अभी के लिए तो दैट इज द ओनली वे बिकॉज एक ही जाने का एक ही तरीका है. AWS मना कर रहा है अपने को कि पासवर्ड बेस से तुम लॉगिन नहीं कर सकते हो. तो देयर इज नो वे वी कैन लॉगिन विद द पासवर्ड. तो विल हैव टू गो विद द की. तो हमने वही किया, हमने की बेस से यहाँ पे लॉगिन किया है अभी. तो इफ आई शो यू द डायग्राम, तो मैंने ये WSL ले लेता हूँ यहाँ पर. ठीक है, ये मेरा WSL है और WSL से मैंने क्या किया, की बेस लॉगिन किया यहाँ से. तो की बेस लॉगिन हो गया मेरा. एंड देन आई हैव मोबा एक्सटर्म. सो मोबा एक्सटर्म से मैंने WSL से गया यहाँ पर, यहाँ पे पासवर्ड इनेबल कर दिया और फिर मोबा एक्सटर्म से पासवर्ड से लॉगिन किया. ठीक है, पासवर्ड सेट किया, पासवर्ड इनेबल किया एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू गेट देयर एंड डू दैट. और उसके बाद में अब ओके, तो उसके बाद में अब हम यहाँ पे पासवर्ड से यहाँ से जो अब सेकेंड हमारा जो लॉगिन किया हमने, दैट इज अगेन ये फायरवॉल तो आएगा ही. इट्स जस्ट ऑथेंटिकेशन मेथड दैट हैज चेंज्ड. तो ये हमारा क्या था, हमारा ये पासवर्ड बेस्ड लॉगिन हो गया. और ये चीज को ये जो है आई कैन एक्चुअली डू दिस. ये देयर इज अ वे टू एक्चुअली डू दिस जो भी हमने किया है. तो ये वाला हम लोग स्क्रिप्ट वैसे ही करना पड़ेगा. विल हैव टू राइट आवर ऑटोमेशन. अब ये जो कस्टमाइजेशन है तो राइट, तो स्क्रिप्ट जो मैंने सिखाया हूँ वो स्क्रिप्ट अब तुमको अलग अलग पर्पस के लिए लिखना पड़ेगा. एंड व्हाट आई वुड लाइक फ्रॉम एवरीवन टू सी इज टू राइट अ क्लीन स्क्रिप्ट. कचरा कुंडी मत करना प्लीज. जब भी कुछ भी दिया जाए ना तो देखो कि किस तरह से साफ सुथरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो सबको समझने के लिए आसानी होती है. जस्ट जाके कुछ भी उसके ऊपर मत डाल दो ताकि कुछ समझ में ना आए सही से क्या कहाँ पे कैसे हो रहा है. ठीक है, तो राइट अ क्लीन वे में. और क्योंकि अभी से तुम्हारा थॉट प्रोसेस बनाओ एंड देन दैट्स हाउ यू विल बी. तुम बाकी लोगों से ना जो बाकी एवरेज क्राउड से तुम अलग हो जाओ, तो वो समझ में भी आएगा और ये भी सारी चीजें तुम्हारा रेपुटेशन भी सही रहेगा. तो ऑलवेज ट्राई टू राइट अ क्लीन वे. तो यहाँ पे मैं फिर से जो की है उसको ये करता हूँ .ssh id_rsa.com. ठीक है, तो ये मल्टी लाइन को कॉपी कर लेना चाहिए विदाउट एनी इशू एंड दिस शुड कंप्लेन ऑफ एनीथिंग. हो गई. तो बिकॉज कीज आर वेरी सेंसिटिव. अगर थोड़ा भी कहाँ पे भी इशू हो जाता है ना तो दैट्स हाउ वी एंड अप, वो मिस्टेक हो जाती है उसमें. ठीक है, तो इसलिए जो ये की है मतलब इसमें इंटीग्रिटी इशू आ जाती है. कहीं पे भी एक कैरेक्टर मिस हो गया, एक स्पेस आ गया, कुछ भी रहेगा ना तो ये रहेगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वर्किंग विद दिस की. ठीक है, इसलिए आई डिड नॉट टेक एनी रिस्क. आई सिंपली रिजॉर्ट, मैं डायरेक्ट पीछे गया एंड I did that purposely so you guys can know few more things. कि log किस तरह से read किया जाएगा, password किस तरह से tweak किया जाएगा, because that's the automation we'll be doing later. हम लोग उसका भी automation करेंगे. जो password हमने set किया अभी manually, that can be automated. That can be automated. That will definitely be automated. It's just how can you do that? So देखते हैं कि if anybody is able to do that before we get to that stage where I will be showing you guys. तो ये भी एक टास्क तुम ले सकते हो कि whatever I did on here, so you can write automation script and do that. So clone में there is a clone with SSH and clone with HTTPS. तो SSH से clone करूँगा मैं because that's what we have. I will not do with the HTTPS. If we were to HTTPS से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर clone करने के जो methods हैं यूजर पास कर सकते हैं हम लोग, SSH की से कर सकते हैं एंड देन टोकन से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 मेथड से कर सकते हैं. और क्लोन मतलब ये 3 ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं
एंड देन देयर आर प्रोटोकॉल्स. तो प्रोटोकॉल्स में क्या है, HTTPS प्रोटोकॉल कैसा रहेगा, जो ऐसा स्टार्ट होता है HTTPS:// ऐसा कुछ भी स्टार्ट होगा ना, दैट इज अ प्रोटोकॉल. तो ये एक प्रोटोकॉल है और दूसरा SSH का प्रोटोकॉल है, ऐसा रहेगा. तो लेकिन SSH का प्रोटोकॉल का जो है देयर इज अ एलियस, जो इसलिए तुमको यहाँ पर जो दिख नहीं रहा है, जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना तो वहाँ पे दिखा नहीं रहा है जैसे HTTPS दिखा रहा है, बिकॉज this is also accepted in SSH, but generally protocol will always be like that. You're gonna have some protocol name : :/, right? So HTTPS में तुम ये दो मेथड सपोर्ट करता है, टोकन और SSH में ये करता है. तो SSH प्रोटोकॉल से SSH की बेस्ड ऑथेंटिक, तुमको अगर SSH से करना है तो तुमको ये करना पड़ेगा. अगर तुमको HTTPS से करना है तो यू नीड अ यूजर नेम पासवर्ड और यू नीड अ टोकन. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग ये वाला प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए. तो की ऐड हो गई है. SSH वाली URL क्लोन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी हो गया. कमिंग बैक टू आवर सर्वर, लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी कॉल्ड repository. और यहाँ पे इसको git क्लोन करते हैं, क्योंकि आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी की. आई मीन अदर थिंग इज देयर इज नो वे आई कैन स्पेसिफाई की विद द git clone command. There is another way, our non-default location पे the non-default name, because default location and default name both are matter. अगर तुम्हारी की default location पे है but it doesn't have a default name, then it won't work. So it has to be with the default location with the default name. ठीक है, so let's do the git clone. फिंगरप्रिंट्स पूछेगा ये, तो that would be for the first time because ये फिंगरप्रिंट्स कहाँ सर्वर का रिटर्न होके आया है. तो ये भी मैन इन द मिडिल अटैक को प्रिवेंट करने के लिए है, क्योंकि जब हमने इस सर्वर को कनेक्ट किया है तो उसका आइडेंटिटी लेकर आया गिट ने. मतलब दैट इज ये SSH में भी कॉमन तुमको देखने मिलता है. तो बिकॉज इट्स यूजिंग बिहाइंड द सीन SSH प्रोटोकॉल, और ये जो हैश फंक्शन यूज कर रहा है वो SHA-256 यूज हो रहा है यहाँ पर हैश फंक्शन, और उसकी जो आइडेंटिटी है सर्वर की, उस आइडेंटिटी का हैश फंक्शन बना हुआ है और वो रिटर्न आया. और दिस विल बी यूनिक फॉर एवरीवन. ये जैसा हमारा DNA और बाकी ये जो चीजें रहती हैं, जो यूनिकनेस रहता है इंसान का, ब्लड, दूसरी चीजें, तो उस तरीके से ये यूनिक है. मतलब फॉर एवरी पर्सन दिस विल बी यूनिक फॉर एवरी सर्वर. तो अगर मैन इन द मिडिल अटैक हो रहा है, मैन इन द मिडिल अटैक क्या रहेगा कि तुमने रिक्वेस्ट यहाँ से इनिशिएट तो किया था इस सर्वर से, यहाँ पर हैकर बैठा हुआ है, हैकर ने तुम्हारी रिक्वेस्ट को, बिकॉज ही इज मैनिपुलेटिंग द रिक्वेस्ट, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग यू हियर ऑन दिस गिटलैब सर्वर, उसने तुमको अपने गिटलैब सर्वर पर लेकर आ गया यहाँ पर. और फिर ये क्या करेगा, SSH इसका फिंगरप्रिंट्स लेकर आएगा, बिकॉज इस सर्वर की आइडेंटिटी लेकर आएगा जो जिसको हैश फंक्शन में बना के लाएगा. तो SHA-256 इज जस्ट द एल्गोरिथम व्हिच विल कन्वर्ट. तो इंटरनेट पे भी हम लोग कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी, अगर तुमको करना है तुम्हारे नाम का, तो SHA-256 डिक्रिप्टर जो है दैट वुड बी लाइक अ रिवर्स इंजीनियरिंग. तो मैंने अगर पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, तो देखो ऐसा पासवर्ड 123, तो उसका ये SHA-256 जनरेट हुआ. तो सिमिलरली यहाँ पे अभी क्या हुआ, मेरे सर्वर का SHA-256 जनरेट हुआ, विच आई डोंट नो गिटलैब का क्या है, बट कुछ ऐसा gitlab.com और जो भी हमने URL दिया था, गिटलैब कहाँ से लेकर आ रहा है, विल हैव टू फिगर आउट, बट दिस इज व्हाट हैपनिंग. तो ये हमको उसने रिटर्न किया है और वो बोल रहा है कि ये तुम्हारा ही सर्वर है क्या, जो जहाँ से आ रहा है ये करके. तो वो सर्वर हमको इसके मैक एड्रेस से बाइंडेड रहता है. तो दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली यूनिक. तो वो हमको इस तरीके से वो बता रहा है. ठीक है, तो if we recognize this, we can go ahead and mark this as yes. If we don't, then we can say no. But in our case वही रहेगा, because हम लोग कुछ इतना सिक्योरिटी लेवल से तो अभी कर नहीं रहे हैं, तो that won't be the case. मैन इन द मिडिल अटैक को प्रिवेंट करने के लिए होता है. SSH में भी वही होता है, because when you originate your request from here, hacker यहाँ से आएगा और तुम्हारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे लेकर आ सकता है. तो फिर यहाँ से फिर तुमको जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग हियर, यू आर कनेक्टेड टू हैकर्स VM, राइट. तो अटैक को प्रिवेंट करने के लिए ये हमेशा प्रेजेंट आएगा, एंड दिस विल ऑलवेज बी देयर, एंड देयर इज अ वे टू एक्चुअली यू कैन प्रिवेंट दिस वन एज वेल. क्योंकि जब तुम ऑटोमेशन करोगे, व्हेन यू डू सम काइंड ऑफ ऑटोमेशन, तुम्हारा ये इंटरैक्टिव वे में रुक गया, राइट. इट्स आस्किंग समबडी टू टाइप यस और नो. ऑटोमेशन में क्या रहेगा, नोबडी विल बी देयर. तुम जस्ट एक स्क्रिप्ट रन करोगे एंड यू विल एक्सपेक्ट दैट स्क्रिप्ट टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो एट दैट टाइम यू कांट अफोर्ड टू हैव दिस वे. तुमको बस सिंपली ऑटो एक्सेप्ट करना पड़ेगा व्हाटएवर इट इज सेंडिंग यू. So there is a way to do that in the SSH, because git clone git command क्या कर रहा है behind the scene, it is using a SSH protocol. So everything that is possible with the SSH वही चीजें यहाँ पे करनी होगी. And this is also public IP of the GitLab, right?
तो you should be able to now determine, तुमको समझ में आना चाहिए कि पब्लिक आईपी है प्राइवेट आईपी है, ठीक है. RFC 1918 we have already gone through it, we have already seen it. कनेक्टिविटी किस तरह से हो रही है, there is a NAT जो हमको एड्रेस ट्रांसलेट करके दे रहा है हमारे होम नेटवर्क से हम लोग कैसा ये प्राइवेट नेटवर्क में जाके कनेक्ट कर रहे हैं, राइट. तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैव बीन कवर्ड, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और मेक सेंस ऑफ दीस थिंग्स. सो विल डू यस. कुछ तो नहीं हुआ, टाइम ज़्यादा हो गया है. Okay, those for some reason did not do this. So say make sure you have the correct access right and the repository exists. हमारा access right तो सही है. तो I guess connection close हो गया था हमें port 22 का, तो maybe it's because we waited, but ये भी बहुत ज़्यादा time ले रहा है. यहाँ पर तो locally हमने फोन करके रखा हुआ है. कनेक्टिविटी का भी इशू रहेगा, व्हाट इज कॉजिंग इट. ठीक है, अभी हो गया. आई थिंक वो कनेक्टिविटी का था, और यहाँ पे बिकॉज वी वेटेड बहुत, क्योंकि उसका टाइम आउट रहता ना, वो टाइम आउट उतना वेट किया उसको ऐसा लगा कि शायद नहीं हो रहा, तो फेल हो गया, राइट. तो दैट वुड हैव हैपेंड. अगर ये केस अगर ऑटोमेशन वे में करते तो ऐसा हो जाता था, बिकॉज फर्स्ट टाइम पे मैंने फिंगरप्रिंट्स अब एक्सेप्ट कर लिया है मैंने, तो इसलिए अब वो मुझे नहीं पूछ रहा है हर बार. तो फर्स्ट टाइम इट विल ऑलवेज आस्क. तो रिमेंबर दिस, व्हेनेवर यू डू द ऑटोमेशन फॉर द गेट रिलेटेड थिंग, दिस विल हैपन. और उस टाइम पे तुमको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज डेवलपर्स लोग का ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे तुमको ये ऑटोमेटेड वे में करना पड़ेगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर द कंसेप्ट व्हाट्स हैपनिंग हियर. सो जब ऑटोमेटेड वे में होगा, जब तुमको चीजें वहाँ पे क्लियरली नहीं दिखेगी, अभी तो यहाँ पे हम लोग सब मैनुअली कर रहे हैं, वी आर एबल टू सी एवरीथिंग. आगे आगे जाएंगे ना तो सारा हमारा जो कंट्रोल हटते जाएगा, बिकॉज हम लोग हर सर्वर पे ऐसे मैनुअली जाके नहीं कर सकते. तो एक हमारा रहेगा, वहां से हम लोग कोड को पुश कर देंगे और वहीं से सारा कुछ चलेगा फिर. एंड देन troubleshooting becomes not as easy what we have here. बट तुम्हारा कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, तो तुमको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बाय जस्ट लुकिंग एट द एरर मैसेजेस लाइक दिस. ठीक है, तो इट्स फास्टर, इट्स बेटर. यहाँ से ये करने के लिए ज़्यादा ये है, आसानी से हो जाता है यहाँ से ये करने को. लेकिन जब आगे जाएंगे हम लोग CI/CD में, तो थोड़ा सा ये हो जाएंगे. तो स्क्रिप्ट्स में आते हैं, बहुत अंदर रखा हुआ है स्क्रिप्ट्स. तो स्क्रिप्ट्स यहाँ से हम लोग देख सकते हैं. दूसरा एक चीज़ करूँगा मैं अभी यहाँ पर, मैं मेरा VS कोड ओपन करता हूँ. ठीक है, तो यू गाइस कैन ऑल्सो VS कोड इंस्टॉल कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी लाइट वेट. The better tool is actually IntelliJ for all of these things, but IntelliJ is a very resource intensive. तो तुम्हारा जो है स्लो कर देगा वो कंप्यूटर या लैपटॉप. तो if you don't have a very good computer, then don't go for IntelliJ. You can use the VS Code, which is very widely popular, and it's popular because of its nature of lightweight. बहुत ज़्यादा lightweight है, it doesn't require a lot of resource. You can just get it up and running. ठीक है, तो install the VS Code. I'll not show you how to install that because it's a very that is straightforward, right? There's nothing fancy here. तो अगर तुम लोग को इंस्टॉलेशन भी नहीं आता है, तो यू आर एक्चुअली इन द रॉन्ग क्लास में हो, बिकॉज एटलीस्ट उतना तो तुमको आना चाहिए किस तरह से एप्लीकेशन इंस्टॉल की जानी चाहिए. दैट बेबी स्टेप्स यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं कैसे किया जाएगा. ठीक है, अब इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फोल्डर है, लेट मी ओपन दैट. What I will have to do actually, मुझे मेरे डेस्कटॉप पे इसको क्लोन करना पड़ेगा. Let's do that in cd mnt let's do that.
यहाँ लोकली भी क्लोन कर लेता हूँ मैं, बिकॉज लोकल में मेरे पास ऑलरेडी की है. आई हैव टू एक्चुअली पुट इट, मुझे इसको मेरे जो विंडोज के फाइल सिस्टम में रखना पड़ेगा, देन ओनली देन आई विल बी एबल टू ओपन दिस हियर. प्रीवियसली मैंने क्या कर रखा था, इसको जो WSL का वर्चुअल फाइल सिस्टम है मैंने उसमें रखा था, तो मुझे वहां से इसको निकालना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर. और क्योंकि मेरे लोकल जो लैपटॉप पे से यहाँ पे ऑलरेडी मैंने की रखा है, तो इट्स जस्ट अ सेकंड टाइम क्लोनिंग, राइट. यहाँ पर whether I do with the WSL पे की रखा हुआ मैंने, by the way, and again it's only WSL पे. अगर मैं यहाँ पे मोबाइल सिस्टम से करूँगा या फिर दूसरे से करूँगा ना, तो नहीं पता चलेगा, बिकॉज जो की स्टोर किया हुआ है WSL के वर्चुअल फाइल सिस्टम पे है. जो मोबाइल सिस्टम क्या कर रहा है, ये विंडोज फाइल सिस्टम यूज कर रहा है डायरेक्टली. इसका वर्चुअल फाइल सिस्टम भी है, और देन ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द विंडोज फाइल सिस्टम. गिट बैश का भी वर्चुअल फाइल, गिट बैश भी है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन गिट बैश पे भी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द की. तो तुम्हारा गिट बैश का की और इसका की सेम नहीं मैच करेगा, ठीक है. तो इफ यू आर डूइंग विद द गिट बैश, और इफ यू आर डूइंग विद द WSL और मोबाइल सिस्टम और एनी अदर टूल, जस्ट हैव टू रिमेंबर कंसेप्चुअली, क्योंकि की कहाँ पर है वो पता करना पड़ेगा. गिट बैश का जो लोकेशन है की का, दैट इज डिफरेंट, एंड इसका जो की का लोकेशन है दैट इज डिफरेंट. तो यहाँ पे मेरी रिपोजिटरी क्लोन हो गई है. लेट मी ओपन. यहाँ पे उसको बस फोल्डर को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देता हूँ मैं. ओके, सो ये यहाँ पर आ गए हमारे स्क्रिप्ट, ये यहाँ पर आ गई है. अब काम कैसे होगा, यहाँ से अब देखो काम कैसा करेंगे हम लोग. ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा, ये हमारा गिटलैब रहेगा, और ये हमारा AWS है. ठीक है, तो यहाँ पर लैपटॉप पर मेरे पास तो VS कोड में हम लोग चेंजेस करेंगे. ठीक है, VS कोड में जैसे चेंज करेंगे तो गिटलैब पे पुश कर देंगे हम लोग. तो ये गिटलैब की जो रिपोजिटरी है दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग. सो यहाँ पे VS कोड से हम लोग चेंज करेंगे और गिटलैब को पुश करेंगे. और ये क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारा AWS पे जो VM बना हुआ है EC2 का, तो ये जो हमारा EC2 का VM बना हुआ है, तो ये यहाँ पे क्लोन हो जाएगा. ठीक है, रिपोजिटरीज डायरेक्टरी में. और फिर हम लोग इसको ये यहाँ से आ जाएगा. ये क्या करेगा, ये यहाँ से हमेशा इसको लेकर आएगा. तो यहाँ से जो हमारा कमांड रहेगा, गिट क्लोन जो है सिर्फ फर्स्ट टाइम यूज होगा, राइट. जब हमने कॉपी किया, उसके बाद में हमेशा जो कमांड चलेगा गिट पुल चलेगा हमेशा जब भी हमको. तो यहाँ से पुश होगा, क्योंकि यहाँ मैं कोड लिखूंगा, यहाँ पे पुश कर दूंगा रिपोजिटरीज में. ठीक है, और ये क्या, यहाँ से कमांड जो चलेगा वो कमांड चलेगा गिट पुल. तो ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे नया चेंजेस आया हुआ रहेगा, उस चेंजेस को उस चीज को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा मैं. ठीक है, तो ये चीज हमको करना होगा. तो अभी हम लोग सारा मैनुअली करेंगे, बाद में देयर आर हुक्स. तो हम लोग एक शेल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो कि इसको क्या करेगा, पुल कर सकता है ऑटोमेटिकली. दैट समथिंग विल सी. हम लोग, क्योंकि जैसे यहाँ पे पुश होगा ना, तो यहाँ से हम लोग पुल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, कि हमको जाके मैनुअली नहीं करने की जरूरत पड़ेगी. अभी हमको मैनुअली करना होगा, तो लेट्स डू दैट, राइट. तो अभी हम लोग स्क्रिप्ट को पहले देख लेते हैं कि इफ एवरीथिंग इज करेक्ट इन द स्क्रिप्ट, और शेल चेक मारते हैं स्क्रिप्ट पे हमारा. तो लेट्स ये शेल चेक भी जो है आगे जाके मैं इसको इंटीग्रेट करने का बता दूंगा. अभी लेट्स कीप इट सिंपल, मतलब अभी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं. ठीक है, बाद में हम लोग ये शेल चेक डायरेक्ट कर सकते हैं. तो वी डोंट नीड टू डू कम हियर, वी कैन, बिकॉज़ इट्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. सारा का सारा कोड सोर्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है. तुमको अगर करना है तो तुम भी कर सकते हो. मतलब जिन लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से काम करता है. शेल चेक कर लेते हैं जस्ट टू सी इफ वी हैव एनी एरर्स. सो नो एरर, ऑल वार्निंग्स, राइट. तो वार्निंग में क्या रहेगा, यहाँ पे बता रहा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा है, वो बोल रहा है कि डबल कोट से रैप, डबल इससे रैप कर दो. ठीक है, मेरा जो वेरिएबल है यहाँ पे ऐसे दिया था, तो बोल रहा है कि उसको रैप करो. तो आई कैन अप्लाई दिस, एंड देन उसके बाद में क्या हो रहा है, VI sudo it is डबल कोटेड. यहाँ पर भी वही है. तो सजेशन भी दे रहा है जहाँ जहाँ पे है, वो सिर्फ बोल रहा है कि डबल कोट में कर लो ताकि ब्लॉबिंग टू
to prevent globbing and word splitting. To understand what is this, right, you can click and read about this. What is a globbing and word splitting? So why we need to wrap this in the double quote. तो सब जगह पे सजेशन भी बोल रहा है कि तुम्हारा कमांड ऐसा है, तुम इस कमांड को ऐसा करो, तो और इस पे क्लिक करोगे तो मैं कर दूंगा जाके वहाँ पे, ठीक है. तो यू कैन क्लिक दिस. और ये चीज जो है हम लोग पाइपलाइन में करेंगे, मैं तुमको पाइपलाइन में भी करके बताऊंगा हाउ वी कैन इंटीग्रेट द शेल. बैश इज नॉट अ वेरी रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो तुम बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख सकते हो या डेवलपमेंट कर सकते हो. यू कैन डू दैट बट दैट्स नॉट desirable way to do that. You have a lot of different object oriented programming languages like Python, Node, Go, Java and all those. तो उसमें होगा. एंड उसके लिए तुम्हारे पास में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं. अभी तो हम लोग सिर्फ बैश का देख रहे हैं, बैश लिखा है, बैश को टेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. बैश की बेस्ट प्रैक्टिस वी कैन एक्चुअली डूइंग अ कोड क्वालिटी देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग. तो सिमिलरली इफ यू वर्क विद द पाइथन you will have a different way to do that. You'll have a different way to test. You'll have a different way to unit test as well. तो वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं. डिड यू मीन टू अप्लाई दिस? तो इसमें अभी बाकी सारे मैं नहीं करता हूँ, राइट. सिर्फ देख लेता हूँ कि जो ज्यादा कंसर्निंग है. जो रेड रहता ना तो दैट वुड हैव बीन द एरर व्हिच मींस देयर इज अ मिस्टेक. बाकी ये वाला है फॉर नाउ आई एम फाइन, आई कैन लिव विद दैट, इट्स नॉट अ बिग डील. ये मतलब इशू कर सकता है पोटेंशियली, दिस कैन लीड टू सम एरर, राइट. दैट्स व्हाट ये हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे. बट एटलीस्ट दीज आर नॉट अ एरर, सो आई विल नॉट गो एंड waste time right now. तुम लोग कर सकते हो when you do this. I'll simply copy. तो कुछ दिखने रहे हैं यहाँ पे वार्निंग में क्या बोल रहा है, script path appears unused, verify use. तो script path जो मैंने यहाँ पे लिया हूँ वो बोल रहा है कि unused है. तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया है वो बोल रहा है कि ये वेरिएबल को तुमने कहीं पे भी यूज नहीं किया है. Actually we have used it. नहीं किया. script command कहाँ से आया? स्क्रिप्ट नेम क्या है एंड स्क्रिप्ट पाथ. ठीक है, ये अनयूज्ड है बट कुछ दूसरे पर्पस के लिए बनाया था शायद, मैं याद नहीं. सुडोर्स फाइल ये भी बोल रहा है कि अनयूज्ड है. तो warning appears, file appears unused, verify. तो ये हमने सुडोर्स फाइल बनाई थी एंड व्हाट डिड वी डू, हमने जो सुडोर्स हमारा लिखा है वो कहाँ पे हमने डाल दिया. हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे हार्डकोर कर दिया ना उसको, तो सुडोर्स फाइल, राइट. ये हमने जो फंक्शन लिखा हुआ है दैट्स नथिंग बट, उसके बाद वो होने के बाद वी नीड टू कॉल दिस. तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. दीज आर द वेरिएबल्स. लेट्स डू अ क्विक रिफ्रेशर. वो बोल रहा है कि दिस इज अनयूज्ड वेरिएबल, दैट इज फाइन. दिस इज आल्सो अनयूज्ड वेरिएबल. तो अभी हम लोग उसको यूज में लाते हैं. आई डोंट रिमेम्बर फॉर दिस वन क्या पर्पस था, लेकिन ये क्या करेगा, डर नेम देगा हमको. क्या कर देगा, तो जो हम लोग उसको फुल पाथ देंगे तो उसका ये कमांड है, राइट. दिस इज द वे टू यू एग्जीक्यूट द कमांड. $0 क्या करेगा, स्क्रिप्ट को जिस तरह से रन की जा रही है वो स्क्रिप्ट का पूरा वो प्रिंट करेगा. समथिंग वी हैव सीन इट. मैंने तुमको एक एक करके बताया ये सारी चीजें पहले. एंड देन इसके अंदर में एको स्क्रिप्ट नेम में जो भी यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद में हम लोग ऑफ यूज कर रहे हैं. डॉट जो है हमारा सेपरेटर है एंड देन वी आर प्रिंटिंग द फर्स्ट लाइन. तो इनकेस अगर ये फाइल का नाम क्या है, user.sh रहेगा, तो ये दो कॉलम बन जाएंगे. एक कॉलम बनेगा क्रिएट, दूसरा कॉलम बनेगा sh, एंड दैट वे आई कैन जस्ट गेट $1 का मतलब रहता है कॉलम 1. तो ये चीजें हो रही है. तो मैं दैट्स हाउ आई विल गेट द स्क्रिप्ट कमांड कि स्क्रिप्ट को किस तरह से रन करना चाहिए यूजर ने. तो .sh करके ये रहेगा. वैसा हमने बताया है कुछ, which is not the correct way. That's not how the user should run it. यूजर को रन करना पड़ेगा .sh से ही. तो पूरा बताना चाहिए था हमने यहाँ पे. ये ऑफ की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि मिसलीडिंग हो रहा है. क्योंकि हमारे जो स्क्रिप्ट का नाम है .sh है, अगर बिना .sh के तुम रन करोगे तो स्क्रिप्ट रन नहीं होगी. ठीक है. व्हाट आई मीन हियर इज, लेट मी शो यू दैट. यहाँ पे बैश ये है. यूसेज हम लोग कहाँ पे दे रहे हैं. अगर ये इफ कंडीशन है, अगर UID अगर ये रूट से रन नहीं हो रहा है तो यूसेज आने वाला है. ठीक है. तो ये रूट से रन नहीं हो रहा है तो आई शुड गेट अ यूसेज. तो यहाँ पे यूसेज आ गया हमारा. तो एरर में क्या हो रहा है, प्लीज एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट विद द सूडो प्रिविलेजेस. नेम में बोल रहा है क्रिएट यूजर, और थोड़ा उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया है. सिनॉप्सिस में हमने सूडो क्रिएट यूजर बोला है, बट दैट्स नॉट द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ दैट्स व्हाट आई वांट देन आई विल सिंपली हैव टू रिमूव .sh, क्योंकि
अगर यूजर ऐसा रन करता है, ठीक है, तो यूजर बोल रहा है अच्छा दिस इज सिनॉप्सिस, सो लेट मी कॉपी दिस एंड देन मैं यूजर नेम देता हूँ यहाँ पे विच इज अ मैंडेटरी एंड आई कैन ऑल्सो स्पेसिफाई मल्टीपल यूजर नेम एंड मल्टीपल ऑप्शंस। ये इतनी हमने फाइन ट्यून किया नहीं है, तो अगर यूजर यहाँ पे यूजर देता है इफ ही ट्राइज टू रन इट दिस वोंट वर्क, राइट, ये फेल हो जाएगा बिकॉज वो बोलेगा ऐसा कोई कमांड है ही नहीं मेरे पास, राइट। तो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। ये मतलब एक मिस्टेक है यहाँ पर which we can simply correct by removing this because this file needs to be run with .sh. It has .sh, it needs to be executed with the .sh. Okay, so for now leave it because ये just readme है and we are the only people who will be using it and it is sometimes I do this purposely in a video so the people who are just watching video they are not blindly watching video, तो उनको issue आए and then they should start looking into it. तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा असाइनमेंट को डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें हम लोग रखेंगे कि दे हैव टू गो एंड वॉच द वीडियो तो समझने के लिए। तो ये लेकिन दिस वोंट डू एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ओके, सो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि वी आर मेकिंग श्योर दैट दिस स्क्रिप्ट इज रनिंग विद द सूडो प्रिविलेजेस, नहीं तो वो क्या कर रहा है एरर मार देगा यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्लीज एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट विद द सूडो प्रिविलेजेस एंड दैट्स व्हाट वी गॉट हियर एरर, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एंटर दे सकते हैं उसको, तो डैश डी और यहाँ पे एंटर दे देंगे। तो अब देखो मैंने चेंजेस कहाँ किया हूँ, आई हैव एक्चुअली चेंज्ड हियर और मैं रन कहाँ पे कर रहा हूँ, EC2 पे रन कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने चेंज किया वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं फिर से रन करूँगा तो वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है, यहाँ तक AWS तक, तो उसको मुझे पहुँचाना पड़ेगा। तो उसको पहुँचाने का तरीका देखो मैंने बता रखा हूँ यहाँ पे, पहले गिट पुश करना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट व्हाट वी गोना डू, गिट पुश से नहीं होने वाला हमारा काम। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चेंजेस को गिट में ट्रैक करना पड़ेगा, तो गिट ऐड गिट कमिट उसको मैसेज देना पड़ेगा एंड देन उसके बाद में मैसेज आएगा जो भी रहेगा यहाँ पर कि हमने क्या चेंजेस किया है एंड दिस इज व्हाट, ये जो चीज़ है हमको हेल्प करेगा टाइम ट्रैवल करने में। गिट क्या करा रहा है, हमसे टाइम ट्रैवल कराने के लिए हेल्प करता है। तो कौन से टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ था वो इवेंट हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं कि ये टाइम पे हमने ये चेंजेस किया था, तो दिस वाज द इवेंट, और वो उस तरीके से जाके वहाँ पे करेगा। फिर उसके बाद गिट पुश करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से इस बंदे को बोलेंगे चल अब तो गिट पुल कर, यहाँ पे जो भी चेंजेस आया तो अपने पास लेकर आओ चेंजेस को। वो जब अपने पास चेंजेस लेकर आएगा देन वी कैन रन दैट, ठीक है। तो अभी छोटा सा जो है मैं करके दिखाता हूँ तुमको स्मॉल। तो चेंजेस किया, बहुत ही माइनर चेंज है। What I will do, I'll open the integrated terminal. ये PowerShell में ओपन हुआ, let me open this in the WSL. Yes. अब मैं यहाँ पे git status कमांड करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि क्या क्या इसके अंदर में फॉन्ट बड़ा करना है। बहुत ज़्यादा, I think this is good enough. You guys can see. तो मुझे बोल रहा है कि ये जो तुम्हारी फाइल है ये फाइल में प्रॉब्लम है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जब भी तुम गिट कर रहे हो ना, सब इज कंसीडर टू बी द बेस्ट प्रैक्टिस। अनलेस यू आर अ मास्टर ऑफ अ गिट देन तुम कहीं से भी करो, लेकिन अभी तुम लोग नहीं हो मास्टर ऑफ अ गिट, तो ऑलवेज कम टू योर पेरेंट डायरेक्टरी। तो पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, ये है ओपन कम्युनिटी। तो ये जो दिखा रहा है ना हमें, दिस इज द पेरेंट डायरेक्टरी, सो ऑलवेज कम इनसाइड द पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो डोंट रन द गिट। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कमांड लाइन से कुछ करना ही नहीं है, हम लोग पूरा फाइल एडिटर से करेंगे, इसको ओपन करके यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। तो आई एम ऑलवेज गोना बी इन द पेरेंट डायरेक्टरी, आई नेवर गो इनसाइड एनी सब डायरेक्टरी, बिकॉज मैं यहाँ से ये एडिटर से मैं करने वाला हूँ सारा चीज। तो यहाँ पे गेट ऐड कर दूंगा मैं अभी, ऐड में बिकॉज इट्स वन फाइल, तो आई कैन जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। फिर से गेट स्टेटस करेंगे हम लोग, तो अब वो फाइल चलेगी। ये जस्ट कि तुम वैलिडेट करो, इट्स नॉट लाइक कि तुमको हर बार करने की जरूरत है। करने की जरूरत क्या है, अगर तुम मास्टर बन गए हो तो ऑल यू हैव टू डू गिट ऐड गिट कमिट गिट पुश, बस तीन ही चीज करना है तुमको। गिट स्टेटस अभी के लिए करना तुमने, क्योंकि तुमको पता चले कि तुम क्या कर रहे हो, ईच स्टेप थ्रू व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ गया है एंड इफ यू वांना नाउ, ये क्या कर रहा है, उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। विल टॉक अबाउट दिस, आई गेस रनिंग आउट ऑफ टाइम टुडे एज वेल। सो रमजान, द पर्पस आई एम एक्चुअली ओनली कंडक्टिंग one week में, ताकि जो लोग नए ज्वाइन हुए they can get time to catch up with the previous videos, right, and then everybody can come to a same page पे आ जाएंगे and then we can progress हम लोग ये करते रहेंगे। फिर रमजान के बाद में we'll speed it up and we'll cover all the topics, but we've been running this for last I don't know 5 months, right। बहुत सारे हमारे बीच में छुट्टियाँ हुई हैं, but
स्टिल मेरा प्लान था कि 6 महीने में होगा, लेकिन लुक्स लाइक आई माइट हैव टू एक्सटेंड दिस टू 12 मंथ्स और 9 मंथ्स, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द गुड पीपल एंड प्रमोटिंग देम टू, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं उसको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए. So if you also making a good progress, you will also get an opportunity. So git status, git commit message डालना पड़ेगा. तो adding and this commit message should always be in the present tense. ये तुम्हारा कभी भी past tense नहीं होना चाहिए, because अभी तो तुमको ऐसा लग रहा है कि चलो चेंजेस तो मैंने कर दिया, तो past tense होना चाहिए ना, कि added comment, added extra line, जो भी था यहाँ पे हमने क्या चेंज किया यहाँ पर. एक ही चीज चेंज की, जो कि हमने ये लगाया डैश ई लगाया, और सॉरी यहाँ पे डैश ई लगाया और न्यू लाइन दिया यहाँ पर. तो ये हुआ नहीं है, दैट समथिंग विल आगे पता चलेगा हमको जब हम लोग एक्चुअली में CI/CD में थोड़ा CI/CD इंट्रोड्यूस करेंगे. तो एडिंग एक्स्ट्रा लाइन फॉर रीडिंग क्लैरिटी जितना डिस्क्रिप्टिव लिखना है ना उतना लिखो ऑलवेज, बिकॉज जितना कम लिखोगे उतना तुमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर है. और जब तो जो गिट का फायदा है ना वो उठा नहीं पाओगे. गिट का फायदा है कि यू कैन ऑलवेज गो बैक, और तुम अगर एकदम छोटे छोटे से मैसेज रख दोगे कि एडेड लाइन, मॉडिफाइड लाइन नंबर 56, तो तुमको नहीं समझ में आएगा व्हेन यू हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ कमिट्स. ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर प्रैक्टिस टू राइट मतलब डिस्क्रिप्टिव कमिट मैसेजेस. ठीक है, तो कलर भी देखो चेंज हो गया, बिकॉज देयर आर नो मोर, इसमें मतलब बता रहा था दिस इज जस्ट बता रहा है मुझे, बट यहाँ पे अभी वो कलर चेंज हो गया, नहीं बोल रहा है कि एवरीथिंग ग्रीन हो गया. तो आई कैन डू गिट लॉग डैश डैश 1 लाइन, एक लाइन में मुझे सारे कमिट बताएगा जितने भी हो रखे हैं अब तक. तो इससे पहले जो हमने देखो इनिशियल कमिट एक मारा था, फिर एडिंग फाइल फॉर लिनक्स यूजर क्रिएशन, उसके बाद में ये किया था, और अभी हमने ये किया एडिंग एक्स्ट्रा लाइन फॉर रीडिंग क्लैरिटी इन द एरर मैसेज. ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया है, बट दिस इज ओनली हियर. यहाँ कमिट यहाँ पे कर दिया मैंने, कमिट अभी तक यहाँ हुआ है, जब पुश करूंगा तब यहाँ पर आएगा. तो नाउ आई हैव टू डू द गिट पुश. गिट पुश करूंगा तो क्या होगा, गिटलैब पे चले जाएगा. ठीक है, गिटलैब पर आ गया यहाँ पर. अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से पैरेंट डायरेक्टरी में आना पड़ेगा. यहाँ चेंजेस किया, गिट ऐड गिट कमिट किया, गिट पुश कर दिया, रिपोजिटरी पे आ गया है. अब मैं यहाँ पर लॉग इन हो गया हूँ, राइट, बिकॉज आई एम हियर ऑन माय सेशन. अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पे पुल करना पड़ेगा हमको. तो यहाँ पे अगर तुम गिट स्टेटस करोगे ना तो वो तुमको बताएगा कि तुम पीछे चल रहे हो. ये ब्रांच इज अप टू डेट, रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन गिट पुल कर लेना है. तो रिफ्रेश करते थे ना तो वो बताता था कि तुम्हारा जो ब्रांच है वो पीछे हो गया है एक कमिट. तुम्हारे ब्रांच पे वो सारे जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे वो सब बता रहा है इन्फॉर्मेशन कि क्या हुआ है. वो बोल रहा है कि इस फाइल के अंदर में 2 लाइन ऐड हुई है और एक फाइल चेंज हुई है, तो ये फाइल में कुछ चेंजेस हुआ है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आ जाती है. गिट शो हम लोग करके देख सकते हैं क्या इस एग्जैक्टली हुआ इसके अंदर में. तो गिट लॉग डैश डैश 1 लाइन करेंगे यहाँ पर. तो फिर से ठीक है, कमिट आईडी है, आई कैन डू गिट शो. तो बताएगा मुझे क्या हुआ है यहाँ पर. ठीक है, गिट शो में क्या किया उसने, जो आई कैन देन अगर मल्टीपल फाइल है तो आई कैन स्पेसिफाई द फाइल नेम, या फिर वो एक साथ पूरा प्रिंट कर देगा, जहाँ पे चेंजेस हुआ ना सारे प्रिंट कर देगा. तो यहाँ पे देखो सारा ये बता रहा है कि ये पहले ऐसा लाइन था, उसको चेंज करके ऐसा किया. तो ये तो कमांड लाइन से देखने का तरीका हो गया. यू कैन एक्चुअली सी दिस फ्रॉम हियर एज वेल. कमांड लाइन से थोड़ा डरावना दिखता है, तो वी कैन सी दिस फ्रॉम हियर. गिटलैब पे से जाते हैं और इसके यहाँ पर आता हूँ. यहाँ पर भी देखो वैसे ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, सारा का सारा रखा हुआ है. तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो बताएगा मुझे यहाँ पर आया हुआ है. ठीक है, ये इसका कमिट आईडी है. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ सिमिलरली, जैसा मैं अभी शो देख रहा ना, तो देखो गिट शो. तो जैसा गिट शो मुझे दिखा रहा था कि इस फाइल में ये लाइन उड़ा दी गई है और ये लाइन लगा दी गई है. तो मैं यहाँ पे कमेंट वमेंट ऐड कर सकता हूँ. विल सी दैट आगे जब कोलैबोरेटिव वे में काम किया जाएगा तो वो तरीके से. तो सेम चीज़ देखो यहाँ भी दिखाई दे रही है हमको, वहाँ पे भी दिखाई दे रही है. एंड हम लोग कमिट में जाएंगे तो यहाँ पे UI बेस्ड में आ रहा है, राइट, कि जितने भी गेट लॉग से हम लोग देख रहे थे वो सारे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. तो मुझे इसमें जाके देखना है कि कितने कितने फाइल में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ था, सब बताएगा यहाँ पर.
और अगर मुझे कमांड लाइन से देखना है तो git show उसका कमांड है, राइट। तो यहाँ पर आ गया है। अब मैं स्क्रिप्ट को फिर से रन करता हूँ, तो बैश लिखते हैं एंड देन लिनक्स स्क्रिप्ट्स एंड स्क्रिप्ट नेम, और इसको फिर से रन करते हैं। तो अभी देखो एक एंटर आ गया इसके अंदर, राइट, एक न्यू लाइन आ गई, क्योंकि वही हमने ऐड किया था। यहाँ पे क्या किया, न्यू लाइन ऐड किया, और हमने ये एको से ऐड किया है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो एको कमांड जाके देखो, वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दोस हाउ टू डू दिस। तो ये हमने स्क्रिप्टिंग के टाइम पे भी कर लिया था, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमारा काम इस तरीके से होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, बाद में ओवर टाइम क्या होगा, तुम परेशान हो जाओगे। छोटा सा कमिट करना है, यहाँ पे लेकर आना है, तो पूरा ये ड्रिल करो, फिर उसके बाद यहाँ पर आओ, फिर करो, मतलब इस तरीके से तुमको करना पड़ेगा। तो वी कैन ऑटोमेट दिस, देयर आर लॉट ऑफ गिट हुक्स अवेलेबल प्री बिल्ट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, खुद का हुक बनाएंगे, एकदम सिंपल रहेगा हमारा, एंड दैट विल बी रिटन इन द शेल स्क्रिप्ट। हम क्या करेंगे, खुद का हुक बनाएंगे, और जैसे यहाँ पे नया कमिट आएगा ना, ये ऑटोमेटिक अपने आप को अपडेट कर लेगा, ठीक है। तो दैट विल बिकॉज वो करने का एक पर्पस ये है, आई वांट टू इंट्रोड्यूस cron as well, so you guys can understand what is the cron and how to work with that and how we can combine all of these together. So चीजें जो है मैं आगे आगे इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ ताकि वो एक प्रोजेक्ट यूज केस जैसा बने, बिकॉज व्हेन यू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल यू कैन प्रीटी मच यूज ऑल ऑफ दिस। अगर मैं तुमको छोटा छोटा समझा दूंगा ना तो तुमको समझ तो आएगा, लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग्स है, आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग करने के बाद तुम जाओ रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, थिंग्स विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे मैं एकदम प्रोजेक्टेड बेस्ड अप्रोच पे काम कर रहा हूँ कि एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड, और कंपनी में इसी तरह से काम होगा जैसा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यू विल नॉट फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंसेस। इसलिए जो हर चीज पे मेरा एम्फेसिस है, नाम से सर्वर का नाम कैसा लिखना है, यूजर का नाम कैसा लिखना है, because that's what you'll have to do in the organization. कंपनी में जाके my test, my name, my demo ऐसा नहीं चलता है। कंपनी में तुमको थॉट प्रोसेस लगाना पड़ता है सारा कुछ में। तो दैट समथिंग, तो प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच है हमारा हर किसी में। फॉर एवरीथिंग वी आर एक्चुअली स्टिकिंग टू द प्रोजेक्टेड बेस्ड अप्रोच, एंड दैट्स व्हाट आई फील एवरी टीचर शुड डू इट। मतलब जहाँ पे भी हो रहा है, इंस्टेड ऑफ टीचिंग अस डेमो टेस्ट, और तुम यहाँ पे सीखते, तो व्हेन यू गो बैक टू कंपनी और कोई प्रोजेक्ट में काम करोगे तो पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाता है, तुमको समझ ही में नहीं आए, मतलब तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही नहीं रहता है, एंड देन यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग। तो एटलीस्ट इसमें तुम स्ट्रगल नहीं करोगे, एंड जो भी हम लोग चीजें कर रहे हैं, these are completely can be replicated in the production environment in the project, but कुछ चीजें चेंज होगी, you can't do the blatant copy paste, फिर just simply उठा के पटक दो। कॉपी पेस्ट करने के लिए भी, मतलब नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है, और वो अकल तुमको यहाँ पे डेवलप करना है। बाकी सारा काम तो हमको वही करना है। आईटी में एक चीज फॉलो होती है, डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। उसका मतलब रहता है कि जो चीज ऑलरेडी लिख दिया है ना किसी ने, तो तुम अब वो लिखते मत बैठो। किसी ने कुछ कर दिया है तो तुम नहीं करना, बिकॉज यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी हो गई है तो उसको क्यों कर रहे हो। तो तुमको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट। लेकिन कहाँ पे से करना है, कहाँ पे से कॉपी पेस्ट भी तो नहीं होगा, यू हैव टू ऑलवेज मॉडिफाई। तुमको कॉपी करके उसको मॉडिफाई करके पेस्ट करना होगा। तो दैट इज द डू नॉट री इन्वेंट व्हील, जो आईटी में बहुत ही कॉमनली फॉलो होता है, एंड सब कुछ तुमको हर कोई तुमको बताएगा। तो कभी भी व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है अपने को, हमेशा जो है जिसने भी एफर्ट डाल के कुछ लिखा हुआ है उसको बस रीयूज करना है, ठीक। तो विल राइट आवर ओन गिट हुक्स, देन यू कैन एक्सप्लोर अबाउट जो कम्युनिटी डेवलप्ड है, जो बाकी लोग कर रहे हैं। यू आइडिया एक प्लांट हो जाएगा तुम्हारे इसमें। The Git hooks are just written in some different programming language. हम लोग बैच में लिख देंगे because that's what we are doing, and we'll also introduce something called cron. तो cron से हमारा क्या होगा कि वो हमारा cron is just a scheduler. तुम अलार्म लगा देते हो, तुम्हारा अलार्म 5:30 को बज जाता है, cron भी वही काम करने वाला है, just way to set a alarm. एक हम लोग अलार्म लगा देंगे, बट उसको हम लोग, हमारे अलार्म को हम लोग क्या बोलते हैं कि बजना है तूने 5:30 को, तूने ये म्यूजिक प्ले कर देना। लेकिन हम लोग हमारे यहाँ पे जो हमारा अलार्म रहेगा उसको बोलेंगे कि 5:30 को म्यूजिक प्ले नहीं करना है, 5:30 जैसे होगा ना तो ये करना। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ अलार्म, एक तो तुम्हारा टाइम बेस्ड रहता है और दूसरा रहता है कि इवेंट बेस्ड। तो हमारे केस में क्या होगा, इवेंट बेस्ड पे करेंगे हम लोग। टाइम बेस्ड तुमको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, cron जो तुम्हारा एक शेड्यूलर है जो कि अलार्म जैसा काम करता है। मोबाइल के जो अलार्म्स है वो सिर्फ टाइम बेस्ड पे काम करते हैं, ठीक है। and you can go and do some modification, but at least from the UI तुमको टाइम बेस्ड है कि तुम टाइम सेट कर सकते हो, and then you can set। तो तुमको तुम्हारे पास में ट्रिगर है, and the trigger जो रहता है तुम्हारा, तो टाइम बेस्ड रहेगा और इवेंट बेस्ड रहेगा। और ट्रिगर एंड देन उसमें क्या रहेगा, एक एक्शन, कि जैसे ही ट्रिगर आएगा तो एक्शन क्या करना है। तो हमारे इसमें क्या करते हैं, हम लोग म्यूजिक प्ले करते हैं, दैट्स व्हाट वी डू, राइट। अलार्म में हम लोग क्या करते हैं कि टाइम लगाते हैं, उसके बाद सीधा म्यूजिक प्ले कर देते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इवेंट बेस पे करेंगे। इवेंट क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे एक इवेंट आएगा दैट वुड बी अ कमिट, जैसे यहाँ पे नया कमिट आएगा तो तूने क्या करना है, जाके उसको पुल करके लेकर आ जाना है। तो हम लोग इवेंट बेस पे रहेंगे और हमारा जो एक्शन रहेगा, हमारा एक्शन रहेगा बेसिकली गिट पुल, तो ऑटोमेटिक पुल कर लेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बता ही दिया मैंने, सोल्यूशन भी तुमको समझा दिया। द ओनली थिंग इज जो हमने भी बातें की है वो हमको कोड में लिखना पड़ेगा। तो विल नॉट डू दिस टुडे, विल डू दिस नेक्स्ट वीक। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे जो लास्ट वीक हमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो लेट मी पुश दिस डाउन। और तो एक चेंज दिखा दिया मैंने, ये चेक कर लेगा, ये चेक कर लेगा स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड विद दिस यूजर। उसके बाद में $1 पे मैंने ये सोचा था लेने के लिए, तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस फॉर नाउ, क्योंकि अभी ये इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं स्क्रिप्ट को, कीप इट सिंपल। तो पहला वाला इसने क्या किया, ये चेक कर लिया कि स्क्रिप्ट सुडो से रन हो रही है नहीं, और यूजर शुड सप्लाई एटलीस्ट वन आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर को सप्लाई फोर्स कर रहे हैं एक आर्गुमेंट सप्लाई करने के लिए। तो ये वाला जो है ये एरर आएगा, मतलब इसमें भी एरर मार देगा, बट एरर मैसेज क्या रहेगा, यू हैव नॉट सप्लाइड यूजर नेम, बिकॉज रीडमी में हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे तुमको नहीं समझ में आता। तो रीडमी में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिनॉप्सिस में क्या है, ये है एंड दिस इज द यूजर नेम एंड दिस इज not wrapped with curly brace or square bracket, which means this is a mandatory. This is wrapped with the square bracket, which means this one is optional. तो अभी हमारी स्क्रिप्ट उतनी कैपेबल नहीं है कि 2 यूजर को रन कर सकती है, अभी वो शायद एक ही यूजर को कर रही है। हमारा गैप हो गया ना, तो लूप हमने सोचा तो था लूप लगा के मल्टीपल यूजर को ऐड करेंगे, बट आई डोंट थिंक वी हैव इट हियर, मे बी दैट्स इन अ डिफरेंट। तो हम लोग इसको इम्प्रूव कर देंगे आगे, स्लोली इसको इम्प्रूव करेंगे, बट ठीक है। तो ये वाला भी, and this whole thing is written from the scratch for people जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो seeing for the first time, you can go and watch the other video, other 4-5 हमने sessions spend किए हैं। तो everything is written from the scratch and you'll get an understanding। हमने each command को explain भी किया है उसमें। Okay, so you have not supplied username, यहाँ पे अगर उसका username नहीं आएगा तो वहाँ पे error मार देना। तो उसके बाद में हम लोग शायद कर रहे हैं, so username in यहाँ पे मल्टीपल यूजर दे रहा है, तो ये पासवर्ड रैंडम पासवर्ड सेट किया है हमने उसके लिए, एंड देन उसका जो पासवर्ड है वो हम लोग दे रहे हैं। यूजर नेम का हम लोग पासवर्ड भी सेट कर रहे हैं, एंड दैट पासवर्ड वी आर एबल टू सेट इट दिस वे। एंड उसके बाद में चेक इफ द यूजर इज एडेड सक्सेसफुली। तो अगर ये कमांड ऊपर चला है सही से, जो कि आई थिंक चलेगा, दिस इज अ रॉन्ग वे टू डू दैट, बिकॉज ये फॉर लूप में, ये कैसा फॉर लूप में चल रहा है शायद। फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन एंड कहाँ पर हुआ है, एंड ही नहीं हुआ है, तो हियर इज द प्रॉब्लम। अच्छा फॉर लूप यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। तो फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, एंड यहाँ पर हुआ है। तो फॉर यूजर नेम इन ये क्या है, जो ऑल द आर्ग्यूमेंट्स है, अगर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट किसी ने दिया है तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन भी दे सकता है यूजर, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। लेट्स से कि हमने क्या कर रखा है, स्क्रिप्ट को भी ऐसा बोला है कि ठीक है पहला यूजर ले लो RT DevOps, दूसरा ले लो RT Admins और RT SecOps, ठीक है। तो ऐसे 2 यूजर दे दिया। तो हमारी स्क्रिप्ट, हमारा सिनॉप्सिस क्या बोल रहा है, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द ऑप्शन। तो अब वो शायद यहाँ पे ऑप्शन स्पेसिफाई करना चाहता है कि दिस इज ऑप्शन फॉर यूजर SecOps, ठीक है, कुछ ऐसा मतलब दे रहा हूँ। तो वो इसको भी क्या करेगा, इसको भी यूजर ही ट्रीट करने वाला है, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट में अभी तक वो एबिलिटी हमने डाला ही नहीं कि यूजर नेम और ऑप्शन में डिफरेंस कैसे तेरे को पता चलना है, क्योंकि उसको हम लोग ब्लाइंडली बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐड का मतलब क्या रहता है, जितने भी यहाँ पे पास हुए, तो यहाँ पे जितने भी पास हुए आर्ग्यूमेंट्स, तो 1 2, और क्योंकि ये मैंने डबल कोट में रैप किया हूँ तो ये 3 हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये एक यूजर बनाएगा, ये बनाएगा, और इसको भी एक यूजर कंसीडर करेगा, जो कि वो फेल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर स्पेस आने वाला है। तो जब यूजर ऐड कमांड चलेगा तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो वे वी आर एक्चुअली, हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा यूजर नेम रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, राइट। तो हमने सिनॉप्सिस में डाल तो दिया है, लेकिन उतनी इम्प्रूव अभी तक हमारी स्क्रिप्ट उतनी फाइन ट्यून नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग नहीं करते हैं इसको, पार्क करते हैं फॉर नेक्स्ट वीक, जब हम लोग आगे थोड़ा इसको इम्प्रूव करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। एंड देन जब भी हम लोग कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं ना, तो चीजें भी चेंज होगी। हर बार मैं इस तरीके से भी रन नहीं करूँगा, अभी हम लोग स्लोली मैं शेल स्क्रिप्ट में ही तुमको CI/CD बता दूंगा
और फिर उसके बाद में शेल स्क्रिप्ट से हम लोग क्लाउड प्रोविजनिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि क्लाउड का EC2 इंस्टेंस किस तरीके से बनाएंगे और बाकी चीज़ें किस तरह से होगी। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। तो देयर इज नो वे टू टेल कि आर्गुमेंट यहाँ पे जब मैं मल्टीपल सप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें यूजर नेम कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है। तो अभी हमारी स्क्रिप्ट ब्लाइंडली सबको कंसीडर करने वाली है यूजर नेम, ठीक है। तो लेट्स वो लिख के रखते हैं ताकि हम लोग उसको इम्प्रूव कर देंगे, आई डोंट फॉरगेट, क्योंकि लेट्स तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप चल रहा है जो कि क्या करता है, ऐड साइन है। ऐड क्या बोल रहा है कि जितने भी आर्गुमेंट शेल को पास हुए, तो आर्गुमेंट यही है ना, इस तरीके से पास होंगे, ये पहला आर्गुमेंट, ये दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, जितने भी आर्गुमेंट है, ऐड का मतलब है ऑल ऑफ दम, जितने भी आर्गुमेंट्स आए हुए हैं सबको हम लोग कंसीडर करेंगे यूजर नेम। तो अब वो यूजर नेम इटरेट होगा, अब क्या होगा, लूप होने वाला है, एक के बाद एक लूप होगा। तो पहले के लिए जस्ट पासवर्ड सेट कर रहे हैं हम लोग रैंडमली, इससे ये कमांड है, कमांड को तुम रन करोगे तो यू विल सी व्हाट इज हैपनिंग, एक कुछ भी रैंडम पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा उसके लिए पासवर्ड सेट हो जाएगा और वो पासवर्ड उसको हम लोग एक्सपायर वन टाइम रहेगा ये, ठीक। उसके बाद में ऐड यूजर कमांड रन चलेगा हमारा। ऐड यूजर कमांड में हम लोग यूजर नेम को ऐड कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। आई थिंक दिस इज टेस्टेड, ये एक बार सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है ऐड यूजर कमांड, देन हम लोग वो उसको चेक कर रहे हैं। तो अगर ये सक्सेसफुली नहीं होता है, रिटर्न कोड उसका अगर नॉन जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, देन समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल एडिंग द यूजर। और यहाँ पर भी हम लोग एक एक्स्ट्रा लाइन लगा देते हैं, ठीक है। देन एक्सपायर्ड पासवर्ड अपन फर्स्ट लॉगिन, तो पासवर्ड उसका एक्सपायर कर देते हैं। तो जो भी हमने पासवर्ड उसको दिखाने वाले रैंडमली जनरेटेड पासवर्ड, वो पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए। एंड वी आल्सो गिव दिस गाय सूडो प्रिविलेजेस। सो इसको पहले सूडो प्रिविलेजेस कर दे देते हैं। तो सूडो प्रिविलेज क्या है, दिस इज अ फंक्शन, दिस फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम वेयर, इज कमिंग फ्रॉम हियर। तो इसके अंदर में क्या ले, इसमें क्या लेगा, एक ये फंक्शन को रन करने के लिए तुमको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो इसका यूसेज देखो कैसा रहेगा, यूसेज लिख देता हूँ। तो उसका जो यूसेज रहेगा ये, एंड देन यूजर नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और इसको हम लोग जैसे इस तरीके से उसको फंक्शन को यूज करना है, ठीक है। और ये जैसे यूज होगा ना, तो इस यूजर को क्या कर देगा, सूडोर में ऐड कर देगा। तो ये यहाँ पे सारा चल रहा है कि किस तरह से उसको सूडोर्स में हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, नेम ऑफ द फंक्शन क्या करेगा वो लिख देते हैं, ऐड यूजर टू सूडो प्रोवाइड तो इसमें क्या होने वाला है, नो पासवर्ड रहेगा। तो यूजर को पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी वो sudo कमांड रन करेगा ना, तो इट डजंट हैव टू स्पेसिफाई एनी पासवर्ड। तो हम लोग वो कर रहे हैं डायरेक्टली। We can add a control here as well. Sometimes you don't want to give user, maybe you want to give user with a password, right? तो यहाँ पे हम लोग नो पासवर्ड कर रहे हैं। तो कहाँ गया हमारा, ये रहा नो पासवर्ड है। तो इसके with the help of this we are able to do this. तो let's save it. यहाँ पे ये फंक्शन चल जाएगा। तो जो भी ये हमारा यूजर नेम यहाँ से आने वाला है, वो यूजर नेम यहाँ से भी यूजर नेम रहेगा। एंड ये यूजर नेम को हम लोग सूडोर्स में ऐड कर देंगे। उसके बाद इसका पासवर्ड एक्सपायर कर देंगे। उसके बाद इसका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एंड देन यूजिंग दैट वी कैन ट्राई टू लॉग इन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर लेते हैं थोड़ा। और VS कोड में देखो यहाँ पे ब्रांच दिखाता है मेन। अभी मैं मेन ब्रांच में हूँ, बाद में हम लोग ब्रांच चेंज करेंगे। यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो व्हाट आई एम यूजिंग हियर इज Z शेल। तो अगर तुम लोग को भी ऐसा चाहिए थोड़ा फैंसी, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। तो लेट्स गिट स्टेटस, क्योंकि हमारे पास एक ही फाइल है तो हर बार वही रहेगा। इस बार मैं गिट ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड का मतलब रहता है कि मेरी करंट डायरेक्टरी में जितने भी फाइल में चेंजेस हुए सबको ऐड कर, लेकिन मेरे पास एक ही है। तो ये इसका मतलब रहेगा सिर्फ यही फाइल। तो गिट ऐड, गिट कमिट, और उसके बाद में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, अपडेटिंग, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या हम लोगों ने किया है, क्योंकि हम लोगों ने छोड़ पकड़ करके करा हुआ। तो स्क्रिप्ट में मतलब यहाँ पे हमने कुछ खास चेंजेस किया नहीं, टू बी ऑनेस्ट। जस्ट एक जो एक चीज़ थी वो निकाल दिया, जहाँ पे हम लोग
अगला मैं क्या करने वाला, अगला मैंने क्या कर रखा था कि जो लाइन तो ड्रॉ करनी है कि कौन से पार्ट को यूजर नेम कंसीडर करना है और कौन से पार्ट को ऑप्शन कंसीडर करना है, वो लाइन हमको ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये पुश हो गया होगा एक बार, तो हो गया पुश। ठीक है, ये जैसे पुश हुआ है तो यहाँ पे हम लोग को एक कमांड रन करना है कि पुल। ठीक है, यहाँ पर आ गया है वो। अब यूजर कौन से है मेरे पास देख लेता हूँ पहले। तो मेरे पास RT DevOps है, सो लेट्स ऐड RT SecOps। ठीक है, run that। ये फेल हो गया बिकॉज प्लीज एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट विद द sudo privileges, राइट? तो इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, राइट? तो इसको हम लोग रन करते हैं। तो ये हो गया, देखो ये बोल रहा है कि यूजर क्रिएट हो गया, इसका ये पासवर्ड है। ओके, तो यहाँ पे सारा कर दिया। अब हम लोग एक मैसेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स डू दैट कि कब कहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो ऐड करते हैं। तो अभी फटाक से उसने बना भी दिया, तो उसको शू करता हूँ मैं जस्ट टू चेंज इट। एंड लेट्स कॉपी दिस पासवर्ड, पेस्ट इट, एंटर। अब देखो पासवर्ड उसने एक्सपायर कर दिया, राइट? ऑन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ इज आस्किंग मी टू चेंज द पासवर्ड, सो लेट्स गिव अ डिफरेंट पासवर्ड। ठीक है, वो मैंने कुछ गलत कैरेक्टर टाइप किया, तो इसलिए अच्छा उसने करंट पासवर्ड मांगा है पहले, तो ये इसका पासवर्ड करंट पासवर्ड मांगा है। मैं न्यू पासवर्ड दे रहा था उसको, करंट पासवर्ड दिया। अब उसको एंटर न्यू पासवर्ड। ओके, तो ये RT SecOps यूजर बन गया हूँ मैं, और इसको एंटर करता हूँ। अब इसको हमने सूडो प्रिविलेज भी दिया था, राइट? तो लेट्स सी इफ ही कैन स्विच टू रूट यूजर। अब ये यूजर, तो देखो मैं क्या किया मैंने। यूजर तो बन गया हमारा। अब मैं कौन सा यूजर से लॉग इन था? उबंटू यूजर से लॉग इन था मैं, ठीक है। अब इस उबंटू यूजर ने क्या किया है, इस उबंटू यूजर से हमने क्या किया, कमांड चलाया एंड देन वी बिकेम, हम इस उबंटू यूजर से हम लोग कौन से यूजर बने? RT SecOps यूजर बन गए हम लोग। तो हमने सिंपली ये कमांड रन किया, सू RT SecOps, और हम लोग RT SecOps बन गए। अब इससे मैं क्या करूंगा, बिकॉज यहाँ पे सबका फादर है रूट, क्योंकि इसको हमने रूट प्रिविलेज दिया है ना। तो लेट्स सी इफ वी आर एबल टू स्विच टू द रूट यूजर। तो इससे मैं ये करने वाला हूँ। तो कमांड क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? sudo -i और यह sudo ये, ठीक है। इसके बारे में भी हमने देख चुके हैं कि ये कमांड क्या है और ये कमांड क्या है, सारी चीजें हो रखी है। तो अब मैं इससे ये यूजर बनाऊं, अब इससे ये यूजर बनते हैं। अगर ये रूट बन जाएगा तो विच मीन्स दिस गाय हैज द sudo privileges, जो हमने उसको ऐड किया है वो आ गया। तो sudo -i करते हैं एंड देखो अब ये रूट बन गया, राइट? RT SecOps से क्या बन गया? रूट। तो ये बन गया। अगर मैं अभी रूट से एग्जिट करता हूँ तो विल आई एग्जिट आउट ऑफ माय सिस्टम? नो, मैं इसमें RT SecOps बन जाऊंगा। RT SecOps से एग्जिट करूंगा तो फिर से उबंटू बनूंगा, और फिर से उबंटू करूंगा तो मैं बैक टू I'll be my home। मेरा होम क्या है यहाँ पर? WSL पे आ जाऊंगा, सॉरी मोबा एक्सटर्म पे आ जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने मोबा एक्सटर्म से लॉगिन किया था ना उबंटू यूजर से। तो यहाँ से मेरी जर्नी यहाँ पर है, और यहाँ पर भी एग्जिट कमांड चलाऊंगा तो अब पीछे जाने के लिए एग्जिट करना पड़ेगा। ऑल द वे मैं यहाँ आऊंगा, तो मुझे यहाँ आने के लिए कितनी बार एग्जिट करना पड़ेगा? एक एग्जिट, दो एग्जिट, तीन एग्जिट। मतलब एक बार इस यूजर से, एक बार इस यूजर से, एक बार, 3 बार एग्जिट प्रेस करूंगा तब जाके मैं यहाँ पर आऊंगा, राइट? तो ऐसा एग्जिट लिखूंगा तो RT SecOps में आ गया, फिर से एग्जिट लिखूंगा तो उबंटू यूजर पे आ गया मैं, पीछे पीछे जा रहा है वो। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? लेट्स ऐड 3-4 यूजर ऐड कर दूं, ठीक है। तो RT admins, RT ops और RT dev, ठीक है, इंटर करते हैं। तो तीनों यूजर ऐड हो गए। देखो अब इसमें खाली एक चीज क्या हो रही है, ये वाली जो फाइल आ रही है, ये जो मैसेज आ रहा है, आई डोंट वांट दिस मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड मैं ये कर सकता हूँ, मतलब आई कैन एक्चुअली प्रिंट मैसेजेस, बट आई थिंक दिस इज, यहाँ पे एक ऐसा ये आना चाहिए कि यूजर क्रिएटेड, एक ऐसा पहले मैसेज आना चाहिए और फिर उसके बाद यूजर नेम और उसका पासवर्ड ऐसा आना चाहिए। तो लेट्स क्विकली ऐड दैट जस्ट टू डू अल्टर। तो पहले जो ये मैसेज आ रहा है जहाँ पर हम लोग ये जो फाइल चेक कर रहे हैं ना, इसको हटाते हैं पहले। तो वो यहाँ से हो रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो डेव नल में इसको डालना पड़ेगा 1 1 को।
दिस इज अ रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन किया मैंने 2 और 1 को दोनों को डेव नल में डाल दिया। तो अब वो क्या करेगा, सिर्फ 1 को डालते हैं। आई थिंक 2 और 1 को डालने की जरूरत नहीं है। अगर एरर आएगा ना तो वी शुड सी द एरर। अब जिसको कुछ नहीं दिया है तो इसको यहाँ पे 1 और 2 से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर दोनों देना है तो 2 दूंगा तो सिर्फ क्या करेगा, एरर को वहाँ पे करेगा। 1 दूंगा तो सिर्फ आउटपुट को करेगा, विच इज अ सक्सेसफुल मैसेज इन्फो। एंड राइट नाउ दिस इज आवर इन्फो। वो बता रहा है कि यहाँ पे मैंने ये चेक किया, तुम्हारी आरटी सुडो एडमिन बनी थी, ये सही है। तो वो मैसेज मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने 1 है, तो 1 को देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिस यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो 1 कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये सब बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि एको सक्सेसफुली क्रिएटेड यूजर यूजरनेम। ठीक है, ये ऐसा हम लोग दे सकते हैं और स्लीप लगा देते हैं 2 सेकंड का, तो थोड़ा वो टाइम तो लेगा, अभी वो फटाफट हो रहा है। एंड देन वी कैन ऑल्सो ऐड, हम लोग यहाँ पे ऐसा ऐड कर सकते हैं कि यूजर क्रिएट हो रहा है, so that message we can put somewhere here in the loop. So echo तो इस तरीके से आएगा एक ऐसा मैसेज, और क्रिएटिंग यूजर रहेगा। एंड देन यहाँ पे एक और मैसेज लगा सकते हैं हम लोग, इन्फो एडिंग यूजर यूजरनेम। एक ऐसा मैसेज आएगा, उसके बाद ये चलेगा एडिंग यूजर। यहाँ पे ये मैसेज जो चल रहा था यहाँ पे ये लगा सकते हैं हम लोग, इन्फो generating one time random password for user and adding user creating local Unix user ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये इसका एल्स लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो ये बोल रहा है ना, तो अगर वो सक्सेसफुल रहेगा तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एल्स लिखते हैं, एल्स यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इनको तो user successfully username, and then यहाँ पे एक और मैसेज डालते हैं, adding user to sudo, adding sudo privileges to the user. ठीक है, ये इस तरीके से अब इतने सारे हर जगह पे वो क्या करेगा, एक मैसेज पर्पसली किया मैंने, राइट, जस्ट टू गेट सम फीलिंग, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट यू वांट। और नॉर्मली ये ऐसे ही रहना चाहिए तुम्हारा, मतलब ये जो रहेगा ना प्रोडक्शन स्क्रिप्ट में, तो ये इस तरीके से रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग को एंटर दे देते हैं। ठीक है, अब मैं क्विकली कर दूंगा सारा कुछ, राइट, आई विल नॉट वेस्ट टाइम टू शो यू गाइस एवरीथिंग। So git status, git add, git commit, जैसे यहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे इसको बुला लेंगे।
गेट कुछ कंप्लीट हो गया, गेट फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे चेंजेस आ गए। अब हम लोग जाते हैं और यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट ले लेते हैं हमारी। अब यहाँ पे दूसरा यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे हमको थोड़े। तो कितने यूजर क्रिएट हुए हमारे पास में, तो RT DevOps, RT Admins, RT Ops, RT SecOps सारे क्रिएट हो गए। तो अब लोकल एडमिन करके क्रिएट करते हैं। तो लोकल एडमिन क्रिएट करते हैं, एंटर मारते हैं, तो देखो आगे। तो क्रिएटिंग यूजर, ये मैसेज बीच में आना चाहिए था। इन्फो जनरेटिंग वन टाइम रैंडम पासवर्ड फॉर द यूजर लोकल एडमिन, क्रिएटिंग लोकल यूनिक्स यूजर लोकल एडमिन, सक्सेसफुली क्रिएटेड यूजर लोकल एडमिन, एडिंग sudo privileges to the user, setting password to expire अपन फर्स्ट लॉगिन। ठीक है, ये उसका यूजर नेम है, ये उसका पासवर्ड है, ये हमको उसको दे देना है। मतलब इन केस जस्ट बता रहा हूँ, ये बैक इन द डे दिस यूज्ड टू हैपन, बट अभी कौन सा डेटाबेस यूज होता है, एक्टिव डायरेक्टरी, बट स्टिल देयर विल बी सम सिचुएशन वेयर यू वांट टू डू दिस। तो यहाँ पे दोनों पर्पस सर्व हो रहे हैं हमारे, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या रहेगा, हमारा एक्टिव डायरेक्टरी रहेगा। तो वी डोंट नीड टू डू दिस, वी हैव टू डू समथिंग एल्स, विल सी दैट लेटर एज वेल। हाउ टू कनेक्ट, विल हम लोग भी एक्टिव डायरेक्टरी बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे आगे के क्लासेस में, और हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे यूनिक्स सर्वर से। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो गया। आई थिंक जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी वो स्क्रिप्ट इज सक्सेसफुल नाउ, राइट? इट्स वर्किंग द वे वी एक्सपेक्टेड इट टू बी, एंड वी हैव आवरसेल्फ अ वेरी गुड, एक हमारे पास में एक प्रोडक्शन लाइक सेटअप हो गया है कि वी कैन डू डेवलपमेंट फ्रॉम VS कोड एंड वी कैन डू दिस हियर। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक गिट हुक्स में लगा देंगे, मतलब वी कैन जस्ट क्रिएट अ गिट हुक, सो दैट वे एवरी टाइम वी डू समथिंग हियर, राइट, दैट इज अवेलेबल हियर। तो अब इसी स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे, गिट हुक एक मैं बनाता हूँ यहीं पर, लिनक्स में ही स्क्रिप्ट है ना, तो स्क्रिप्ट में एक और बनाते हैं हम लोग। लिनक्स में ही एक बनाते हैं डायरेक्टरी, उसको लिख देते हैं गिट करके डायरेक्टरी देते हैं, और डायरेक्टरी का नाम चेंज कर देते हैं। और इसमें अभी तो नहीं लिखेंगे हम लोग, बस मैं सिर्फ स्केलेटन बना के रख दे रहा हूँ, सो विल डू दिस लेटर। तो अभी मैं फिर से गिट ऐड, ठीक है, यहाँ पर भी अभी इसको यहाँ पर भी बुला सकते हैं। आगे हम एलएस करते हैं लिनक्स में, तो एक गेट करके बन गई है, एक यूजर करके बन गई है। इसको हम लोग ऑटोमेशन में डाल सकते हैं, वी कैन एक्चुअली क्रिएट सम काइंड ऑफ ऑटोमेशन। तो प्लान अभी तो मेरा वही रहेगा कि ज़्यादातर इसमें वही सारे चीज़ें रखा जाएगा जो ऑटोमेटेड वे में हो रही है। दूसरा हम लोग गाइड बना सकते हैं, लेट्स क्रिएट अनदर वन कॉल्ड, लेट्स क्रिएट अनदर वन ऑटोमेशन, और गिट को इसमें डालते हैं बिकॉज दैट्स व्हाट वी गोना डू, एंड यूजर्स को भी उसमें डालते हैं बिकॉज दोज आर विद द इंटेंशन ऑफ द ऑटोमेशन, राइट। अब इसमें सिर्फ यहाँ पे तो आ गए हैं, ये गाइड में हम लोग क्या रहेंगे, हमारे सारे रीडमी रहेंगे हमारे। तो सेटअप यहाँ पे लिख देते हैं यूजर creation डॉट md। तो इंस्ट्रक्शंस जो है MD और मतलब रीस्ट्रक्चर एक है, MD है, HTML है। तो इसमें देखो ऐसा दिखाई देगा तुमको, तुम जो भी लिखोगे तो यहाँ पे वो इस तरीके से दिखाई देगा। तुमको कमांड लिखना है तो यू कैन राइट अ कमांड लाइक दिस, मल्टीलाइन कमांड लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो। कमांड क्या रहेगा, यूजर मॉड एंड देन यूजर नेम, तो वो उसको ऐसा कमांड करके दिखाई देगा तुमको। तुमको अगर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो यू कैन यूज
user and so not user mode and command to, तो यूजर ऐड क्या था, कमांड था, तो मैं इसको ऐसा कमांड बता सकता हूँ, तो उसी लाइन, तो ये मोर ऑफ अ इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन किस तरीके से बन रही है। अभी के लिए तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ऐसा छोड़ देता हूँ इसमें, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में करेंगे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रॉपर सेटअप एंड देन इसमें एक असाइनमेंट करके भी बना के इसमें आर्टिफैक्ट भी हम लोग डाल सकते हैं, तो गूगल ड्राइव के यहाँ पर भी ला सकते हैं, बट उसको मतलब आइडिया है कि एवरीथिंग शुड बी कोड वे, तो वर्ड फाइल एक्सेल फाइल नहीं डालना है यहाँ पर, कोड में मतलब डालने के तरीके हैं, तो एमडी है, रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, एक्सएमएल है, एचटीएमएल है, वो सारे इसमें डाल सकते हैं हम लोग। तो अभी के लिए नहीं डालेंगे कुछ ये सब, अभी विल ओनली फोकस ऑन द ऑटोमेशन। सो मैं जस्ट एक अपने लिए सेटअप बना रहा हूँ। तो यूजर्स में हमने क्रिएट यूजर की स्क्रिप्ट है हमारे पास में, गिट में हमारा गिट हुक करके रहेगा, एक बनाने वाले हम लोग आगे, तो गिट हुक में मैंने कुछ डाल दिया, तो इसको फिर से दिखाना, तो क्या हो रहा है, हर बार करना पड़ रहा है, राइट, तो ये चीज ऑटोमेट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है, ये हमको हर बार मैनुअली आके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये हो सकता है इस तरीके से। ओके, सो गिट, तो स्टिल मतलब instead of directly talking about Git, I wanted to show you guys how to actually get things done with the Git, right? इसलिए पहले पूरा जो मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाया, तो we do the script, we do the Git. अब आगे के लेक्चर्स में मतलब I'll explain you how Git works. Now you should be able to wrap it up, right? तुम अपने आसानी से डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे वहाँ पे किस तरह से चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो गिट का तुमने एक्चुअली वर्किंग देख लिया है, बेसिक वर्किंग देखा अभी तक हमने, वी हैव नॉट गॉन इनटू आगे के लेवल तक हम लोग गए नहीं है, वो लेवल तक हमको जाना है, तो हम लोग उसका थ्योरी देखेंगे। तो प्रैक्टिकल हमने देख लिया बिकॉज इट वाज वेरी इजी टू गेट स्टार्टेड विद, अब उसका थ्योरी भी देखेंगे आगे। यस असद। एक्चुअली शरद भाई, मेरा ना एक सवाल था जो एसएसएच के सेशन के रिलेटेड था, थोड़ा प्रीवियस था। अच्छा, तो जो आपने सेशन जो हम लोग हाइपरवाइजर पे मैंने लैपटॉप पे एक एसएसएच यूबंटू इंस्टॉल करके उसको मोबाइल स्ट्रीम से कनेक्ट किया। तो आपके पीसी में जो शहजाद नाम का जो यूजर मतलब जो मोबाइल स्ट्रीम में है, वो कौन सा है सर आपके पास? ये आपका पर्सनल यूजर वाला है क्या वो? हाँ, ये तो यहाँ का यूजर मैटर नहीं करता, मतलब क्योंकि मैं यूजर नेम दे रहा हूँ, तो अगर बिकॉज हमने क्या दिया था एसएसएच यूजर नेम, तो हमने जो यूजर नेम दिया है वो इस टारगेट सर्वर का दिया। अगर मैं ये यूजर नेम स्पेसिफाई नहीं करूँगा ना, तो मेरा जो भी मैं लॉग्ड इन यूजर मोबाइल एक्सटर्म पे हूँ ना, वो यूजर वो टिक करेगा, दैट इज द डिफॉल्ट यूजर इफ आई डोंट स्पेसिफाई द यूजर नेम, राइट। अगर मैं ये कमांड सिर्फ ऐसा देता हूँ एसएसएच एंड देन डायरेक्टली आईपी एड्रेस, तो ऐसा कुछ मैं देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, वो यूजर मेरा एसएसएच देन आई कैन गिव आईपी एड्रेस डायरेक्टली, तो वो क्या कर लेगा, मेरा जो लोकल यूजर लॉग्ड इन है ना, वो यूजर को उठा के वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो यूजर यहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए, बट वी नो कि यहाँ पे जो भी मेरा यूजर है शेख एसएच मेरा यूजर है, दैट इज नॉट अवेलेबल हियर, तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो यूजर वहाँ पे रहेगा नहीं, वो यहाँ पर आएगा, फायरवॉल उसको अंदर आने देगा और वहाँ पे आके बोलेगा ठीक है मुझे शेख एसएच के डोर किधर है, तो वो डोर तो कभी रहने वाला नहीं है, तो उसका ताला चाबी का तो सवाल ही नहीं होगा, उसके पास में चाबी है, लेकिन वो डोर कौन सा है, उबंटू का है, तो यहाँ पे जो यूजर नेम बने हुए, यू कैन थिंक ऑफ दीज ऑल द डोर, तो तुम अगर गलत डोर को बताओगे, तो यहाँ पे जो गार्ड है तुमको एसएसएच का जो वहाँ पे मेन बंदा है, वो तुमको लेकर जाएगा, वो बोलेगा कि ये नाम का तो कोई भी दरवाजा है ही नहीं यहाँ पे, तो तेरी चाबी तो तू लेके चले जाओ बस, तो तुम्हारी चाबी कभी इवन दो यू हैव द करेक्ट वन, लेकिन तुमने गलत डोर का नाम बता दिया है या फिर गलत घर का नाम बता दिया है विद इन दिस लाइफ, तो वो नहीं चलेगा। तो अगर तुम सिर्फ एसएसएच आईपी करते हो, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट यूजर नेम लेगा। अगर तुम जस्ट एसएसएच करते हो, तो यू कैन इवन डू दिस वे, यू कैन डू दिस वे एज वेल, तो जहाँ पे तुम आईपी स्पेसिफाई नहीं करोगे, तो वो क्या करेगा, लोकल होस्ट लेगा बाय डिफॉल्ट, वो खुद पे ही कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यू कैन जस्ट हिट एसएसएच, you can just write SSH and hit enter and it would work. It will use the default, it will use the local host, it will use the default username for you, and then तो हमने जो कमांड रन किया है, तो वी हैव एक्चुअली गॉन इसके भी एक लेवल पे ऊपर चले गए हम लोग, राइट। हमने ये वाला रन किया था कमांड, एसएसएच दिया था, आइडेंटिफायर दे दिया था उसको कि जहाँ पे भी हमारी की थी key.pem, एंड देन उसके बाद यूजर नेम दिया एंड उसके बाद में हमने आईपी दिया, राइट। तो वी हैव गॉन दिस वे। तो एसएसएच
इस ऐसा भी काम करेगा जहाँ पे से तुम ये हटा दोगे, SSH ऐसा भी काम करेगा जहाँ पे यूजर नेम हटा दोगे, SSH ऐसा भी काम करेगा जहाँ पे IP हटा दोगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन तुम हटा रहे हो तो वो क्या कर रहा है, सारी जगह पे डिफॉल्ट यूज करने वाला है, क्योंकि सारे ऑप्शंस तो जरूरी है, और अगर तुम हटाते जाओगे तो डिफॉल्ट यूज करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन यूज हो रहे हैं, तो व्हेन यू आर नॉट स्पेसिफाइंग दोस ऑप्शंस, वो डिफॉल्ट यूज कर रहा है सारे के सारे। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। आई होप दैट क्लैरिफाइज। क्या क्वेश्चन कुछ और है तुम्हारा डाउट? नहीं अभी तो ठीक है, अगर मैं रहेगा तो कुछ और बताऊंगा या तो फिर व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। हाँ बोलो, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन? लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया हूँ, इट्स इन 2 पार्ट्स बाय द वे, तो चेक अगेन, लेट मी चेक राइट नाउ। मैंने इसको इमीडिएटली अपलोड नहीं किया था, बट इट वाज अपलोडेड लेटर। तो ये देखो 24 पार्ट 1, 24 पार्ट 2, बिकॉज वो इस पावर कट होने की वजह से वो स्प्लिट हो गया था। तो लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग्स है यहाँ पर, यू शुड बी एबल टू एक्सेस इट। ठीक है, यही क्वेश्चन था तुम्हारा? चलेगा फिर, ओके लेट्स रैप दिस अप, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, एंड अंटिल देन प्रैक्टिस करो तुम लोग, एंड प्रिपेयर हो जाओ, बिकॉज वी हैव स्पेंड इनफ टाइम ऑन द लिनक्स। अब हम लोग सब कॉम्बिनेशन में करते जाएंगे, ठीक है? तो चीज़ें तुम लोग को समझने का एक ही ये है सोल्यूशन, कि यू शुड गो एंड गेट योरसेल्फ बेटर विद व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट। जो भी हम लोग ने अभी तक कवर किया फ्रॉम डे 1, तो वो सारी चीज़ें अब तुमको आनी चाहिए। एंड इवन इफ यू नो दिस, आई वुड स्टिल एनकरेज यू टू गो बैक एंड वॉच, क्योंकि अब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम वापस देखने से तुमको बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आएगी। नाउ जब मैं चीज़ें थ्योरी वाली बताऊंगा तो यू विल बी एबल टू इमेजिन कि अच्छा ये हुआ है, बिकॉज आगे जाके हमने इसको इस तरीके से कर दिया है, तो दैट हेल्प्स। तो तुमको अपना concept or understanding better करनी है, तो do this twice, thrice, 4 times, because that's how I used to do that. I still do it. I do this 10 times, 20 times, because that's the way it works. There is only one formula for a success, or to get I mean, at least इसमें success होने का एक ही formula है. You just keep practice. The more harder you work, the better your understanding and the delivery will be. So that's what you need to do. एक ही formula है. There is no better way. If you want it badly, then you will get it, right? And हम लोग यहाँ पे help करने के लिए है ही। Like जो मैं बोलता हूँ, if you want to fly, we'll add wings to your wing, right? तो तुम fly कर सकते हो। तो how do you do that? तुमको practice करना पड़ेगा, तुमको अपने efforts दिखाने पड़ेंगे, तभी चीजें होंगी। तो practice is the only key to success, and वही करो सब लोग। तो सारे videos हैं, you can still go and watch, इतने सारे उसमें content हैं, and then जो अभी चल रहे हैं हमारे साथ में, तो that way you will be able to pick it up, ठीक है? Okay, so let's meet next week, and कुछ क्वेश्चन रहेगा तो you guys are there on the group, you can directly ask.